Namaste to all of you. I welcome you all. And today we have with us Avnish Srivastava ji. Let me introduce him. For a change, I will not be speaking, but Avnish Srivastava ji will be speaking. He is known to me for last many years. Now let me introduce. Avnish Srivastava is a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India and Regional Council member of ICSI. He is founder and managing partner of Nux and Partners, Advocates and Solicitors. Avnish ji is a member of ICSI, law graduate from Delhi University, master in law, postgraduate in commerce and MBA finance. Mr. Srivastava has extensive experience of more than 21 years in corporate and core litigation, corporate law, intellectual property management, contract management, and corporate consultancy. He is also expert in legal matters related to corporate litigation, consumer litigation, civil suits, IPR, labor laws, family litigation, registration and licenses. And POSH, Mr. Avnish is General Secretary of renowned NGO Pink and Blue, a symbiotic living who solely works in the area of POSH. POSH एक separate act है sexual harassment in the office place का. Mr. Avnish imparted training on POSH to more than 50,000 people and trained more than 200 POSH trainers through Pink and Blue. Mr. Avnish Srivastava had established Nux and Partners with a unique vision. Under his leadership, for the first time in India, Nux and Partners has been operating as a corporate law firm in retail concept. In India, there are more than 700 districts, and currently Nux is handling litigation matters in more than 650 districts in India and further expanding its operation in other districts as well. Avnish is a regular speaker and faculty at ICSI, various law colleges, management colleges, bar association, industrial workshops, and government organizations. He is also serving as an independent director at the board of various leading corporates. So अवनीश जी के बारे में मैंने बता दिया, और मैं अवनीश जी को भी ये भी बता दूं, जो हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं और डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया से हैं. एक क्लोज ग्रुप हम लोग चलाते हैं. मैं वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं. तो जॉइन प्रीमियम का एक जीएसटी ग्रुप बनाया हुआ है हमने. उसमें क्या किया है कि हमने हैंड होल्डिंग जीएसटी रिलेटेड मैटर्स करते हैं. अब इसमें होता क्या है कि ये जितने भी जीएसटी नोटिसेस आती हैं उसका हम लोग सजेस्टेड रिप्लाईज करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बताते हैं. अभी जीएसटी में अवनीश जी अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड है, लेकिन जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है जैसे जीएसटी ट्रिब्यूनल, वो अभी ऑल ओवर इंडिया बेसिस मुझे लगता है नेक्स्ट 6 मंथ में स्टैब्लिश हो जाएगी. अब ये जितने भी एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, जब हम लोग अपीयर होने वाले होंगे जज के सामने, तो हम लोग के पास ये एक चैलेंजेस है, क्योंकि जज के सामने में जीएसटी के लॉ के जज के सामने में क्या एक्सपेक्टेशन रहती है. तो आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है अपीयरेंस का, तो इसीलिए वी थॉट दैट यू आर द राइट पर्सन टू गाइड अस और बता पाए कि कैसे जज के सामने अपीयर होते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है जज के लिए. तो ये सारी बातें हैं. तो इसमें आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं, शैलेश जी हैं, ये मध्य प्रदेश के एमपी हैं और काफी रिनाउंड एडवोकेट हैं और ये अच्छा एक ग्रुप भी चलाते हैं. सरफराज जी हैं, पुष्पेश पालीवाल जी है, निशान जी एकदम यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और भी बहुत सारे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि जितने लोग अगर वीडियो ऑन कर पाए तो मैं सबको इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा, और वैसे तो नाम आपका लिखा ही हुआ है. संतोष पाटिल जी भी हैं, जिनके नाम मुझे नजर आ रहे हैं, गोवा से हैं ये. संजय भटनागर जी हैं, कीर्ति कुमार जी हैं, बहुत लोग हैं, स्टूडेंट भी हैं और प्रैक्टिसिंग भी हैं. ठीक है. सो अवनीश जी, वेलकम यू ऑल. वेलकम अवनीश जी एंड वेलकम यू ऑल. एंड अवनीश जी, ओवर टू यू. नाउ यू कैन स्टार्ट. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Agarwal sir, and thank you for introducing me, and thank you so much for inviting me. And it's pleasure to interact with the great professionals, chartered accountant, advocates, and any other professionals. And खास करके मैं आपसे मुझे लग रहा है पिछले 24 साल से मैं आपसे जुड़ा हूँ. And we work together. Sometime you are my teacher also. So it's my privilege for me also who came here and speak about this art of advocacy, court craft and pleading. And earlier I worked in corporate for 9 years. Then I started my law firm.
तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट का भी है और प्रैक्टिस का भी है, तो दोनों को मिक्स करके हम लोग इसको इंटरेक्टिव रखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कीजिए, इसलिए कि अगर हम टाइम लगा ही रहे, आई अंडरस्टैंड, आई हैव ए फुल रेस्पेक्ट ऑफ योर टाइम, योर प्रेशियस टाइम, सिमिलरली ऑन माई ऑल्सो। तो अब जब हम इस इंटरेक्टिव सेशन में बात करेंगे तो हमें ना कुछ नहीं एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स का ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, वेबिनार नहीं है कि मुझे कुछ उसमें सिखाना है आपको, आप सबको आता है। बट करना यह है कि मेरी भी एक्सपीरियंस है, जैसा कि अग्रवाल सर ने बोला कि हम लोग एक दूसरे की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं Yes. और सीखते हैं एक दूसरे से, और एक प्रीमियम ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि हम लोग नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने पूछा भी कि ऐसी क्या जरूरत है कि आपको आर्ट ऑफ एडवोकेसी सीखनी है और ये नई चीजें आपको ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं और कर ही सकते हैं। तो कहा नहीं कि आप जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो समझना है कि होता क्या है। So in this 1 hour and 1.5 hours, we'll just learn and understand and discuss the things about the practical aspects of the art of advocacy, practical aspects of the court craft, practical aspects of the appearances, what are the expectation of the judges, what are the expectation of the tribunals judges, क्योंकि दोनों में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर में किस तरह की प्रोनाउंसिएशन होती है, जज का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, किस तरीके से हम वहाँ पे अपियर होंगे और वहां खड़े होते हैं और वहां बोलते हैं, वहां पे किस तरह का ड्रेस सेंस होना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो भी क्वेरी हुई, सारी क्वेरी पे भी हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको इस बीच में भी लगता है कि नहीं मुझे बात करनी है, तो प्लीज रेज योर हैंड डिजिटली, वी विल स्पीक एंड डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। बट मुझे नहीं लगता है कि लास्ट होते होते आप लोग, कई बार लोग प्रैक्टिस में अपियर भी हुए होंगे, तो जो लोग अपियर हुए होंगे ऑलरेडी, स्टिल यू विल गेट समथिंग, because this webinar is for everyone. So let's start। मैं दोनों लोगों को साथ में लेके चल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो कभी अपियर नहीं हुए हैं, ऐसे लोग जो कि अपियर हुए हैं। So if you can raise your hand digitally, how many have you appeared in any tribunal especially to the tax tribunal, quasi judicial tribunal and the court? अब में से कितने लोग हैं? तो प्लीज रेज योर हैंड डिजिटली। तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में या फिर और कोई ट्रिब्यूनल में अगर आप अपियर हुए हैं, चाहे वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो शायद लोअर कोर्ट में ही है, ट्रिब्यूनल तो नहीं बना उसका। हाँ, लोअर कोर्ट में है। तो एडवोकेट संजय भटनागर जी अपियर्ड। और कोई आप में से है? ये आसान हो जाएगा एक्चुअली, अबे 1-1.5 घंटा तो साथ में रहना ही है। बस इसको हम लोग कितने अच्छे से बिताएंगे, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना आप तक बात पहुंचेगी वो बात इंपॉर्टेंट है। तो I got raised hand brother Pikude and Mr. Anil Agarwal ji and Sanjay Bhatnagar ji. These only 3 hands. तो ये भी अच्छा है कि हम लोग आप में से तीनों में से बता सकते हैं कहाँ पे अपियर हुए हैं। मिस्टर पीकुडे, हम बोल के बता दीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए ताकि फास्ट हम लोग कर पाए। ठीक है सर, मैं आगरा में एक्चुअली संजय जी बोलिए। आगरा सर, गुड इवनिंग अग्रवाल साहब, श्रीवास्तव जी। मैं यहाँ आगरा में मैंने अपियर हुआ हूँ ट्रेड टैक्स ट्रिब्यूनल्स में, सेल्स टैक्स के ट्रिब्यूनल में। यस, हाँ, वैट के जमाने के वकील बहुत हैं यहाँ पे। ठीक, मिस्टर डे। या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है सर, एक्चुअली मेरा अपीयरेंस एक कोलकाता हाई कोर्ट में हुआ था विद वन ऑफ माय सीनियर्स। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी रिगार्डिंग सम रिवोकेशंस, ये सॉरी अपील लेके कुछ केसेस था। तो विदिन आई थिंक 10-15 दिन ही हुआ है, इसका ऑर्डर भी पास हो गया है। दैट ऑर्डर वाज इन फेवर ऑफ अस, सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेट। और आप में से कितने लोग चाहते हैं ऐसा कि अपियर होना आगे फ्यूचर में? अगर ट्रिब्यूनल कितने लोग चाहते हैं आप में से? प्लीज रेज योर हैंड, तो ये पता लग जाए कि हम सब सीरियस हैं। ठीक बात है, प्लीज रेज योर हैंड, और ये भी पता लग जाएगा सब सुन भी रहे हैं। हाँ। तो मैं ये एक्टिविटी चलती रहेगी कि आप सुन रहे हैं मुझे या नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, मैं आपको हिलाऊंगा कि नहीं सुनना है। और एक्चुअली यही होता है मेनली, एडवोकेसी भी यही होता है कि जजेस को हमें ना सुनाना पड़ता है। सुनना नहीं चाहता, कोई भी सुनना नहीं चाहता है। क्या राइट, क्या अच्छी बात ऐसी हम बोलना चाहते हैं जो वहां तक ना एक्चुअली रीच कर जाए। तो यहाँ पे सिर्फ 6-7 लोग अपियर होना चाहते हैं। इज इट राइट? और लोग अपियर होना चाहते हैं, बस बता नहीं रहे हैं।
तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ जिन लोगों ने 14 लोगों के अलावा जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया वो अपीयर होना तो चाहते हैं, लेकिन ये सीखने के बाद। ठीक है अग्रवाल सर? हाँ हाँ जी सर, होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला चीज सबसे पहले आप अब जो हैंड रेज हुआ है यू कैन डाउन इट। So, need to understand few of the things before starting, that what is art of advocacy and what is court craft, pleading. So, advocacy होता क्या है? What is advocacy? अगर कोई बोल सकता है तो बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा था इंटरैक्टिव सेशन। तो इफ यू कैन स्पीक समथिंग यू कैन स्पीक, एनीवन। तो एडवोकेसी वो होता है जब हम किसी चीज, यस, एडवोकेसी मीन्स एनीथिंग जिसको कि अब मैं बोल रहा हूँ यस अवनीश जी। yes, sorry. So advocacy means anything वो जिसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिस चीज के बारे में कोई भी इशू है जिसके सपोर्ट में या जिसके फेवर में या कॉज में हम लोग अपनी बात बोलते हैं। अब ये बात होती है कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है, क्या वो मतलब अच्छी बात है या बुरी बात है, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, और हम लोग जब किसी के लिए अपीयर होंगे तो कभी भी दो तरह के लोग होते हैं, वन विल बी द प्लेंटिफ और अनदर विल बी द रेस्पोंडेंट। प्लेंटिव को अलग अलग भाषा में बोलते हैं, कंप्लेनेंट भी बोलते हैं जब क्रिमिनल केस होता है या चेक बाउंसिंग का केस होता है तो, पिटिशनर भी बोलते हैं, रेस्पोंडेंट को हम लोग डिफेंडेंट भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ दोनों पार्ट होता है। तो कोई एक सच्चा होगा और कोई एक होगा जो कि झूठा होगा, और इसीलिए एक्चुअली हम लोग कोर्ट में जाते भी हैं। तो जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, क्या जो मर्डर का, जो रेप का, या जिन्होंने किसी ने 200 करोड़ का गबन किया है और उसके लिए हम लोग कोर्ट में केस अगर हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उस केस में हमारे लिए क्या एडवोकेसी है? तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को समझ लेना कि हमारे लिए जो भी क्लाइंट मेरा है, मेरी ऑनेस्टी उसी के लिए है और मेरी एडवोकेसी उसी के लिए है। तो मेरा जो क्लाइंट है अगर गबन किया है 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 का, एंड इफ आई एम हेल्पिंग देम इन दिस केस मेरे पास जो होगा वो पूरा का पूरा सपोर्ट जो है और मेरी ऑनेस्टी है वो मेरे अपने क्लाइंट के लिए होगी। सिमिलरली अगर कभी क्रिमिनल केस भी होता है, इसमें मर्डर, रेप या इस तरह के भी जब हम लोग केसेस करते हैं, वहां भी यही सिचुएशन होती है कि वहां पे भी हमारे लिए जो होगा एडवोकेसी है, वो हमारे लिए जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो होता है कि हम किसके फेवर में काम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, टू थिंग्स, क्या जो एडवोकेसी है वो फॉर एडवोकेट्स के लिए है? नॉट लाइक दैट। एडवोकेट मीन्स द एनीवन, क्योंकि कई सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ के अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपीयर हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, सीएमए हो सकते हैं, और भी इंडिविजुअल बेसिस पे एनीवन कैन अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, और पर्सनली भी अगर मेरा केस है तो भी मैं अपीयर हो सकता हूँ इवन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो इन दैट मैटर आई एम एडवोकेटिंग टू माई सेल्फ, सो आई एम एडवोकेट फॉर माई सेल्फ, चाहे मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ उस केस में भी। नाउ अवनीश जी एक ऐड कर देता हूँ जीएसटी का एंगल इसमें। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपने उसका केस ले लिया, देन आपका धर्म है कि यू हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। और अगर अब पूरे जीएसटी लॉ में अगर आप देखेंगे तो हर जगह प्रॉपर ऑफिसर में लिखा हुआ इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो जो डिपार्टमेंट है इट विल ऑलवेज वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, और जो हम लोग हैं अगर क्लाइंट का केस अगर हमने ले लिया है फाइट करने के लिए, चाहे क्लाइंट कितना ही उस वक्त गलत हो या सही हो, ये तो बात की बात है, लेकिन एडवोकेसी करने के लिए यू विल बी वर्किंग ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। वेरी ट्रू। और ये जिस दिन से हम इस बारे में सोच के जब हम काम करते हैं तभी मेरी सक्सेस भी होती है, और देन ऑनेस्टली आई थिंक अबाउट माय क्लाइंट, आई थिंक अबाउट माय वर्क, बिकॉज ऑलवेज इन द कोर्ट रूम व्हाट वी सेज कि कभी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की तरफ से होते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि ये प्लेंटिफ है की तरफ से अपीयर हो रहा हूँ, आई डिड दिस वर्क, दिस इज माई वर्क, और मैं कह के वहां पे हम लोग ना कोर्ट में हमें बोलना होता है। माई क्लाइंट हम लोग बाहर बोलते हैं, वहां मैं बोलना होता है, ये मेरा काम है, मैंने पिटिशन फाइल किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, जो भी होता है वो मैं में हो जाता है। मैं मीन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग
means if I am the plaintiff lawyer, if I am advocating for the plaintiff or advocating for the defendant, तो ये पहला पार्ट तो होता है कि मेरा अपना होता है. अच्छा. So yes sir. So now coming to the art of advocacy part, that what to do and how to do. ये होता है advocacy में क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है. So अब advocacy ऐसा नहीं है कि एक बस ये है कोर्ट में गए और अपीयर हो गए. एक अपीयर होने के लिए भी काफी लंबी चौड़ी चीज होती है जो कि हमें पूरे सिस्टम को रेडी करना होता है. जब भी केस आता है तो एक पूरे सीक्वेंस को, इट्स सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज. कभी लोग कहते हैं इस आर्ट और साइंस. आई ऑलवेज से एडवोकेसी इज ए साइंस, तो ये कहा जाता है. और एडवोकेसी में अब तो हम लोग, मैंने बताया कि अब हम सब शामिल हो गए. वी ऑल आर द लॉयर्स नाउ. तो अब कहते हैं कि एक हिंदी में कहावत थी, जहां ना पहुंचे कील वहां पहुंचे वकील. अच्छा. इस कंसेप्ट का होता है कि जहां भी पहुंचने की कोई जगह भी नहीं है ना, वहां हम पहुंच जाते हैं. और तभी लोग एक्चुअली हमें हायर भी करते हैं. वरना आप समझते हैं दुनिया में सब लोग, आप लोग डील कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं. हम सबके पास जब भी कोई आता है ना, अंतिम टाइम में भी आता है. पहली बार वो इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करके खुद देखता है कि अच्छा मैं फाइल कर पाता हूँ तो कर लेता हूँ. अच्छा जीएसटी आया है, मैं खुद ही फाइल करके देख लेता हूँ, क्या जरूरत है. और हमारे बिहार और यूपी में भी तो ऐसा भी होता है ना कि वहां तो सीधा लोग कोर्ट में ही पहुंच जाते हैं. क्या जरूरत है वकील का, सीधा जज से ही बात कर लो. तो वहाँ बीच वाले सिस्टम जो एडवोकेसी की भी जरूरत नहीं होती है कई जगह पे. तो वो क्या होता है कि फंसते हैं. इन टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट्स, यहाँ पे काफी लोग कॉर्पोरेट में भी काम करने वाले लोग होंगे. कॉर्पोरेट में क्या होता है कि वहां पे सबसे लास्ट में केस आता है. जब पूरा रायता फैल जाता है, पूरा केस बिगड़ जाएगा, तब जाएगा लीगल डिपार्टमेंट के पास. तब बोलेगा अब इसको ठीक करो जी, मैं भगवान हूं, मैं ठीक करूंगा. तब वहां पे हमारे पास मौका आता है तो अर्न मनी, और वहां से हम पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं. तो ये कंप्लीट सेट ऑफ एक्टिविटीज है, पूरी एक्टिविटीज है. उस एक्टिविटीज को हमें ना कहीं करना होता है, फिर जाके हम लोग इसकी आगे तक हम लोग फ्लो करते हैं. अब आगे आते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि आर्ट ऑफ एडवोकेसी इसलिए भी समझना जरूरी है कि जैसे मैंने बताया कि जहां ना पहुंचे कील वहां पहुंचे वकील. इसके कंसेप्ट में होता है कि आपके पास कोई भी आता है तो एक दुख और दर्द लेकर आ जाता है. वो आता है प्रॉब्लम लेकर. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उसको कुछ पता नहीं होता है. सीधा आया कि ये देखिए एक नोटिस आया है जी, आपके व्हाट्सएप पे नोटिस भेज दिया. अब आप उसको डायग्नोस करना है कि एक्चुअली वो नोटिस है क्या. जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम सीधा बोलते हैं क्या है जी, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है. वो कहाँ का दर्द है, क्या दर्द है, अब डॉक्टर पूरी स्क्रीनिंग करके उसको ठीक करता है. सिमिलरली वी आर ए लीगल डॉक्टर. हमारे पास भी कोई आता है तो एक पर्टिकुलर तकलीफ लेके आता है और हम लोग को उसकी पूरी डायग्नोस करनी है. वो डायग्नोस ऐसा है कि ना हमें उसको इंटरनल अंदर तक जाना है कि समस्या कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट हुई है. फिर हमें पूरा उसका सीक्वेंस बनाना होता है, और सीक्वेंस बनाने के बाद फिर हम लोग आगे तक उसको फ्लो करते हैं. और ये भी पता करते हैं कि इस केस में या इस मैटर का एज क्या है, इसका डिसीजन क्या हो सकता है. वो प्रोबेबिलिटी तय करना होता है. वो फायदा करता है आपको जब आप फीस कोट कर रहे होते हैं. तो कई बार आपका कोई भी केस आता है, चाहे वो अगर जीएसटी के लिए आता है, रिकवरी का आता है, या कोई ऐसी चीज आती है, तो मुझे पता नहीं कितनी बार मुझे अपीयर होना पड़ेगा वहां पे, या मुझे डिपार्टमेंट में. अवनीश जी, मैं एग्जांपल देता हूँ जीएसटी का ताकि लोग कनेक्ट कर पाए. जो अवनीश जी कह रहे हैं कि पूरा टाइमलाइन बेसिकली बनाना पड़ता है. जैसे एक केस हुआ था, हम लोग आपके साथ डिस्कस है, SMT 10 आया, SMT 10 के बाद DRC 01A आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद DRC 07 आया, देन यू गो फॉर अपील. तो ये टाइमलाइन बनाना पड़ेगा. SMT 10 कब आया, पहला असेसमेंट का नोटिस कब आया, उसका आपने क्या रिप्लाई दिया, किस डेट को रिप्लाई दिया. SMT 10 तो सिर्फ स्क्रूटनी का है, तो उसमें सिर्फ डिस्क्रिपेंसी बता देते हैं, डिस्क्रिपेंसी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है. फिर DRC 01A आता है, जहां पर इंटीमेशन ऑफ लाइबिलिटी कहते हैं, बेसिकली इट इज ए कम्युनिकेशन. फिर DRC 01 आता है, दैट इज अ शोकॉज कम डिमांड नोटिस, जहां पर वो कहता है कि ये कारण से आपको ये डिमांड पेमेंट करना है, यानी कि ग्राउंड वो बताता है कि these are the grounds on the basis of which you have to make the payment. फिर जब आप उसका रिप्लाई करते हैं कि these are not the reason why I will be making the payment, these reasons are not applicable to me, therefore I am not liable to pay. फिर वो आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा. फिर वो DRC 07 ऑर्डर पास कर देता है कि these are the reason I do not accept your reason and you have to make the payment. और आपको पेमेंट करना पड़ता है. अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपील में जाना है 10% का प्री डिपॉजिट करके.
तो ये पूरा अगर टाइमलाइन आपने नहीं बनाया कि कब कब क्या क्या हुआ है, तब तक आप ये एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे। ई वे बिल में, खासकर ई वे बिल में जब गाड़ी पकड़ी जाती है और ऑर्डर पास कर देता है, तब तो टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अवनीश जी, ओवर टू यू। यस, सो यहाँ पे मैं आपने कहा काफी अच्छा है कि जीएसटी से आपने कनेक्ट किया, बट मैं इस सेशन को एक चीज से और लेके चलना है कि आप सबके लाइफ में बहुत कुछ होता होगा आसपास में। पता लगा कई बार आपके क्लाइंट का पैसा भी अटक जाता होगा, तो एक सिविल केसेस रिकवरी का भी फाइल करना होता होगा, चेक बाउंसिंग का भी होता होगा, या ऐसे बहुत सारे मोमेंटम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी आते होंगे, फैमिली डिस्प्यूट्स भी आपके आसपास आता होगा। तो एक्चुअली ना मैं उन सारे पर्सपेक्टिव को लेकर बात करता हूँ। और होता क्या है, स्मॉल सिटीज या बड़े सिटीज में ना, वहां, या मैं दिल्ली की बात बताऊं जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भी अगर कोई भी किसी को जानता है, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, एडवोकेट हो, तो वो जानता है कि ना सीए भी है ना तो सब बीमारी का इलाज उसके पास है, एक एडवोकेट भी है तो उसको भी सब बीमारी का इलाज है, तो वो आपके पास आता है। तो एक्चुअली ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बड़ी क्लियर हो जाती है, तो हमारे को कहीं ना कहीं आगे फायदा मिलता है। अब हम लोग आते हैं इन चीजों में ना, कि मैंने जिस एज की बारे में बात कर रहा था, वो एज एक्चुअली बात कर रहा था उस मैटर का एज, उस मैटर का कंप्लीट एज, उस मैटर का एज क्या है। मैटर एज मीन्स, let's I received one notice from the GST department or any other department. Now अब ये नोटिस आया है, तो नोटिस आने के बाद रिप्लाई फाइल होगा या जो भी आपकी प्रोसीडिंग होती होगी। क्या ये हो सकता है कि हाई कोर्ट भी तक भी जाए? क्या ये हो सकता है कि किसी और अपीलेट बोर्ड तक भी जाए? तो ये कहीं ना कहीं जब हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कोट आवर फी इन अ बेस्ट मैनर। क्योंकि हम लोग काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। और जब तक पैसा का एक्चुअली सही पैसा किस चीज पे डिसाइड होता है? मेरे टाइम पे, मैं इस पे कितना टाइम लगा रहा हूं। सो अब यहाँ पे दो तीन चीजें आ रही है, कुछ लोग हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो अग्रवाल जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मिक्स करूं। हाँ, और मोस्ट ऑडियंस, कंफर्टेबल जिसमें हो आप वही कीजिए। मैं कंफर्टेबल दोनों में हूँ। Okay. यहाँ ऑडियंस भी अगर मिक्स है तो हिंदी में ज्यादा कनेक्शन होगा सबका, जैसा मैं देख रहा हूँ। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ इंग्लिश में करना है, आई कैन स्पीक। ठीक है, मतलब जो इच्छा है आपकी। So I'm just mixing it both the things. तो अब ना मेरा पर्पस ये था कि जब मेरे पास मैटर आता है तो इन दोनों को मैं एज क्या है वो मैं डिफाइन कर लूं, और एज डिफाइन करके मैं फीस एक्चुअली उसका कोट कर सकता हूं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब मेरे पास एक केस आ गया, चाहे वो जीएसटी में अभी ट्रिब्यूनल बनने वाला है, और आई एम श्योर आप लोग अपीयर होने वाले हैं, या जैसे कई सारे लोग कोर्ट में भी अपीयर हो रहे हैं। तो अभी हमें किस तरह से उसको स्टार्ट करना है, क्या समझना है पहले, वो इम्पोर्टेंट है। दिस वन, दैट प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरी द इफेक्टिव एडवोकेसी। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पहला चीज है, अंडरस्टैंड द जुरिस्डिक्शन, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जुरिस्डिक्शन मीन्स वेयर यू विल फाइल द केस। वेयर यू फाइल द केस में दो चीजें और आ जाती है, एक तो आती है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, दूसरी आती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये आपके इसमें जो भी आ रहा है उसके बाद सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड भी हर जगह आपको अटैच करना ही पड़ेगा वहां पे। और साथ में उस पार्टिकुलर जीएसटी में कर रहे हैं तो उनमें क्या कहता है, एनसीएलटी का काम कर रहे हैं तो उनकी जुरिस्डिक्शन क्या कहती है, मतलब आप केस कहाँ फाइल करते हैं। जनरली लोग सोचते हैं केस मैं वहीं फाइल करूंगा जहाँ की प्लेंटिफ रहता है, मतलब कंप्लेनेंट जहाँ रहता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन एराइज होता है या फिर जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है, कुछ जगह ऐसा होता है। टॉकिंग अबाउट द एनसीएलटी मैटर, वहां पे जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। अब यहाँ पे कहाँ केस फाइल होता है अग्रवाल सर? जीएसटी में। जीएसटी में कोई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो वो ऑलरेडी, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है, बटन दबाना वो एग्जैक्ट वहीं पर पहुंच जाता है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अभी जीएसटी में है नहीं कुछ। हाँ, तो यहाँ जब भी बनेगा तो यहाँ भी वही बनेगा जहाँ पे कंपनी के या जहाँ पे आपके उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस होगी, वहीं पे आपकी जुरिस्डिक्शन बनेगी केस फाइलिंग करने की। ये जब भी रूल आएगा तो यही आएगा, क्योंकि यही यूनिवर्सल रूल बना हुआ है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। फिर मॉनेटरी लिमिट्स भी होती है, यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट्स जीएसटी में आएगा, कैसे आएगा मुझे पता नहीं है। जीएसटी में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि कंपनीज मैटर में या दूसरे मैटरों में जो होता है वहां पे पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की लिमिट होती है। ये पार्टिकुलर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा अगर 2 करोड़ दिल्ली है जैसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कंज्यूमर में होता है, कंज्यूमर फोरम।
डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल को लेकर। हाँ, प्लेस ऑफ Exactly. सप्लाई का है तो जीएसटी ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच में जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं है तो स्टेट बेंच में जाएगा, बस इतना ही है। ठीक। और अगर पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है तो वो डिपार्टमेंट के लिए है, एसएससी के लिए फिर भी नहीं है, टैक्स पेयर के लिए फिर भी नहीं है। ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि अब अगर मेरे पास चाहे, चूंकि आज हम लोग जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग फॉर द ऑल काइंड ऑफ द लिटिगेशन। तो किसी भी तरह के लिटिगेशन या केसेज होता है तो यहाँ पे ये दो चीज बहुत मैटर करता है। अगर जहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है तो अच्छी बात है, बट 99.9% जगह पे ये डिस्प्यूट इसीलिए क्रिएट होता है कि जुरिस्डिक्शन के लिए ही डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि ये सही जगह पे केस फाइल नहीं हुआ है। पहला ही डिस्प्यूट यही होता है। तो हम लोग जब भी फाइल करें, जिस केस के अंदर भी फाइल करें, जैसे वन जेंटलमैन सेड अबाउट द कंज्यूमर फोरम्स कि वहां पे जुरिस्डिक्शन होता है, तो मैक्सिमम जुरिस्डिक्शन होता है। तो जब भी हम केस फाइल कर रहे हैं, जस्ट टेक ए कंसिडरेशन ऑफ द पेक्यूनरी एंड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अगर कहीं नहीं आपके लॉ में लिखा हुआ है तो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस को जरूर पढ़िए। तो आप या जिसमें जैसे जीएसटी में है या नहीं है उसके रूल्स और प्रोसीजर में आ जाएगा, उसको पढ़ के ही हमें फाइल करना है, क्योंकि 99% जो केसेस डिसमिस और रिजेक्ट होते हैं वो ड्यू टू द पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होते हैं। सेकंड, प्रिपेयर थॉरोली, पूरा केस को थॉरोली पढ़ना है। जैसे मैं जनरली करता हूँ क्या हूँ कि अगर मेरे पास किसी भी तरीके का केस आता है, मैं क्लाइंट को ही बोलता हूँ कि आप मुझे केस स्टडी बना के, पूरी ब्रीफ मुझे बना के दो, डिटेल्स लिख के दो, अपनी भाषा में लिख के दो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, जो भी लैंग्वेज आता है ना, आप मुझे लिख के दे दो कि आपका मैटर क्या है। 2 पेज 1 पेज में डिटेल्ड में लिखो, जो भी आपको याद आता है आप लिख के दे दो। उनके लिख के देने से आप क्या करेंगे, यू कैन डेवलप योर स्ट्रैटेजी that which kind of the case you will file, where you will file, क्या आप किस टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट है जो उस केस के लिए लेंगे। जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल कि हम जैसे डॉक्टर्स का ही मैंने बताया। अब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, और ये सारे दर्द का इलाज कई बार होता है गैस हो गया है, बताते हैं गैस हो गया है, गैस की दवाई ले लो, ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को एक्चुअली पता है कि क्या बीमारी है। उसी तरीके से करना यही चाहिए कि अपने क्लाइंट से पूरी डिटेल आप ले लो। अगर हम जीएसटी का भी काम जो हम कर रहे हैं उनसे भी हम ले रहे हैं तो उनकी पूरी हिस्ट्री जान लो। कि होता यही है कि कई बार ना जब आपके पास क्लाइंट आता है वो भी बड़ा स्मार्ट होता है, वो इतना ही आपको बताता है जो कि जितना उसको कम पैसे आपको देने पड़े, उससे ज्यादा सोचता है, ज्यादा बता दिया तो इन्होंने कहीं मुझसे ज्यादा पैसे तो नहीं मांगे। तो इस कंडीशन में ट्राई यही करना चाहिए कि उनसे पूरे रिटर्न में ले लें, उनको मना करें कि नहीं आपको किसी भी तरह की बात आप हाइड नहीं करो, आप सारी बातें मेरे से बता के चलो। एंड देन यूज अ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। कई बार हम लोग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो जब ड्राफ्ट कर रहे होते हैं पिटीशन, रिप्लाई या और भी सारी चीजें, वहां हम अपने बारे में सोचते हैं, वहां अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। वहां आप ये सोचो कि सामने वाला ऑफिसर है वो कितनी आपकी लैंग्वेज को समझ सकता है। समटाइम आपके मैं कहूँ कहीं भी एक स्मॉल सिटी का नाम ले लेते हैं, वहां पे जो साहब हैं या जो अधिकारी है उनको कंप्लीट हिंदी आती है, उनको इंग्लिश आती नहीं है ढंग से। अब मैंने उनको ऐसी इंग्लिश की लैंग्वेज डाली, ऐसी इंग्लिश की लैंग्वेज डाली, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा इतना दिमाग लगाने से अच्छा है ना कि छोड़ दो यार इसको, या जो डिसमिस नहीं करो तो फाइल को रख दो, अगली बार हम देखेंगे। ऑलवेज यूज द लैंग्वेज विच कैन अंडरस्टैंड बाई एवरीवन। वहां पे बिल्कुल ही डिटेल्ड में नहीं जाना है। देयर आफ्टर रिटन सबमिशन, कभी भी कोई भी प्लेंट फाइल होता है, कंप्लेंट फाइल होता है तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है। तो ट्राई ये कीजिए कि जब भी आपके हाथ में कोई नोटिस आता है, कोई सम्मन आता है, तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कितने दिन के अंदर में जवाब देना है। तो जितने दिन के अंदर में जवाब देना है आपको रिप्लाई फाइल करनी है। रिप्लाई इज कॉल्ड ए रिटन सबमिशन, सम प्लेसेज इट्स कॉल्ड ए रिवर्जन, समवेयर इट्स द रिप्लाई। तो ये तीनों चीज लगभग एक जैसी हुई। वहां पे हमें रिटन सबमिशन में पूरी चीज एक बार में ले लेनी है। जैसे अब जब हम प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, जब हम कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ एक बार में हमें ले लेना है। कोई ऐसी चीज नहीं हो जो छूटे नहीं। या जब हम कभी फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या कोई हम लेटर लिख रहे हैं, तो अगर मेरी तैयारी जब पहली बार में हो गई, जब हम प्लेंट के करते समय, तो प्लेंटिव का कंप्लीट काम समझ लीजिए दो कि आपका हो गया। सिमिलरली कमिंग टू द रिटन सबमिशन पॉइंट एंड रिप्लाई, उस रिप्लाई के टाइम में जितना भी प्लेंटिव ने टाइम प्लेंटिव की तरफ से लगाया, उतना ही डिफेंडेंट की तरफ से भी आपको पूरा का पूरा लगाना है। सब कुछ आपको डिटेल लेना है, क्लाइंट से फिर से रिटर्न में लेना है, और ट्राई कीजिए कि उनको ईमेल पे लें, क्योंकि बाद में लोग क्लाइंट ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं नहीं सर वकील साहब या सीए साहब आपको तो मैंने बताया था लेकिन आपने ना ये काम किया नहीं।
अब बताया था तो ओरल नहीं रखें, ट्राई कीजिए कि ईमेल पे ही लें और ईमेल पे ही सब कुछ हम काम करें। तो रिटन सबमिशन होने के बाद भी उनको समझ में आता या नहीं आता हो, उनको दिखा जरूर लेना चाहिए और प्रूफ जरूर करा लेना चाहिए। देयर आफ्टर वी विल सबमिट द एविडेंस एंड देन दी क्लोजिंग आर्गुमेंट्स। ये क्लोजिंग आर्गुमेंट और एविडेंस क्या होता है, हम लोग आगे एक बार उस पर चर्चा भी करेंगे। अब आते हैं कि प्लीडिंग की बात, कि प्लीडिंग क्या होता है। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी केस जब हम फाइल करते हैं, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, या फिर क्वैसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के पास केस हो, चाहे वो हम जीएसटी का फाइल कर रहे हैं या फिर हम कंपनी लॉ से रिलेटेड कर रहे हैं या सिविल केस कर रहे हैं, क्रिमिनल केस कर रहे हैं, प्लीडिंग हर जगह मैटर करता है। प्लीडिंग होता क्या है? प्लीडिंग होता है, प्लीडिंग इज ए फाउंडेशन ऑफ एनी लीगल केस, embodying the heart of advocacy in the written format। ये पूरा फाउंडेशन क्रिएट होता है। ऐसे घर बनता है ना, तो घर बनने में पूरी फाउंडेशन हम लगाते हैं, तो उस फाउंडेशन ही होता है ये जो प्लीडिंग होता है। केयरफुली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट्स आर ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द लिटिगेशन प्रोसेस और एंड द लेआउट द क्लेम्स एंड डिफेंसेस ऑन द फैक्चुअल ग्राउंड ऑफ द केस। अब सोचते हैं कि प्लीडिंग होता क्या है, तो एक्चुअली प्लीडिंग ये होता है, आप सबने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा इसमें इन चीजों का, कि प्लेंट होता है। इससे अभी हम बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन, प्लेंट और पिटीशन, तो ये सब कुछ एक्चुअली प्लेंट होता है जो मैंने किया। तो ये सब कुछ जो पार्ट है ना, वो पार्ट है प्लीडिंग का। और प्लेंट जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि ऐसा ड्राफ्ट करना है कि सब कुछ ही उसमें आ जाए, पूरी स्टोरी आ जाए। और स्टोरी कैसे हो? सिक्वेंशियल स्टोरी हो। कई बार स्टोरी भी क्रिएट करते समय बहुत चीजों का ध्यान में रखना होता है कि स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि स्टोरी सबको इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि मैं कहूँ कि किसी एक इंसान की स्टोरी है कि एक बच्चा हुआ, बच्चा पैदा लिया, पैदा लेने के बाद वो उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद वो स्कूल चला गया, स्कूल जाने के बाद फिर से कॉलेज चला गया, कॉलेज होने के बाद वो ना उसके बच्चे की शादी हो गई, फिर वो बूढ़ा हो गया। एक तो एक स्टोरी है। एक स्टोरी ऐसी भी होती है, एक बच्चा हुआ, जन्म हुआ, फिर वो प्राइमरी स्कूल गया, फिर अपर स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, कॉलेज के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई, गर्लफ्रेंड बनाने के बाद साथ ही साथ उसने अपने जॉब की भी तैयारी किया, ये कर लिया, सीएस कर लिया, एडवोकेट बन गया, उसके बाद उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसने फिर से गर्लफ्रेंड बनाई। तो अब ये ना जमेगा नहीं, गर्लफ्रेंड बनाई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने कॉलेज की, फिर शादी की, शादी के बाद फिर से उसका बच्चा हुआ, बच्चा फिर से स्कूल गया, फिर उसका बच्चा फिर से कॉलेज गया, फिर से उसने प्रोफेशनल कोर्स किया, फिर से वो बड़ा हुआ। सो यहाँ पे जो स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी थी, वहां पे सीक्वेंस नहीं था। सेकेंड स्टोरी जो हमने डिस्कस किया कि पूरा बच्चा जिस स्कूल से लेके बूढ़ा हो रहा है वहां तक का स्टेज था, ये एक सीक्वेंस है। पिटीशन भी या प्लेंट भी जो होना चाहिए, इतना ही आसान होना चाहिए कि वो कोई भी पढ़े, बड़ी आसानी से उसको 2, 4, 5 पेज में कहानी समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम लोग चाहते क्या है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेंट। अब वही हम रिटन सबमिशन में भी आते हैं, रिटन सबमिशन में भी ऐसे ही होता है। वहां से ट्राई यही करना चाहिए कि पहले हम कहानी को बिल्टअप करें। कभी भी आप देखते हैं, कभी कॉमेडियन आता है या कभी स्टोरी वाला आता है, तो 5 मिनट आकर ना बिल्ड करता है, स्टोरी बिल्ड करता है। जैसे मैं अभी आज आया तो अग्रवाल साहब ने एक स्टोरी बिल्ड की कि अवनीश श्रीवास्तव के बारे में इन्होंने एक पेज सर ने पढ़ा, इन्होंने एक स्टोरी बिल्ड कर दी मेरे लिए। अभी आते हैं सीधा बोलते हैं, अग्रवाल साहब अभी अवनीश जी है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कहीं पे, अभी आ गए आपके सामने 2 शब्द बात करेंगे। आपको लगता है क्या है, कौन आया है, नहीं आया है, कैसे होगा? अब इन्होंने बोला कि अच्छी रीजनल काउंसिल मेंबर हैं, एडवोकेट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, प्रैक्टिस है, 22 साल का एक्सपीरियंस है, 650 सिटीज में काम करते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस सब कुछ करते हैं। अब लगाओ कि नहीं, आज कुछ सुनने में मजा आने वाला है, आज कुछ लर्निंग होने वाली है। तो ये भी एक स्टोरी का पार्ट होता है जहां कहीं ना कहीं हम इसको आगे लेकर फ्लो करते हैं। तो इसी तरीके से जो रिटन सबमिशन होता है, वहां पे पूरी स्टोरी आपकी उसी ढंग से होनी चाहिए। डिफेंस आपका होना चाहिए। रिटन सबमिशन मतलब कि डिफेंस। अब डिफेंस में होते होते भी अपनी बात भी कहनी है। मैंने कहा कि प्लेंट फाइल हुआ कि 200 करोड़ का मुझे रिकवरी फाइल हुआ है, या फिर डिपार्टमेंट ने फाइल कर दिया केसेस की नहीं, 10 लाख रुपए का जीएसटी की चोरी हुई है, ऐसा करके एफआईआर फाइल हो गया। अब यहाँ कहा कि यहाँ 2 ही ऑप्शन है। मैं गया वहां पे एफआईआर, मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो कोई 10 लाख लिए ही नहीं है, मैंने 200 करोड़ का कोई चोरी ही नहीं किया। एक तो बात ही हो गई। अब मैंने चोरी नहीं किया 200 करोड़ की, या 200 करोड़ का मैंने गबन नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये भी विद रीजन भी हमें देना पड़ेगा। और पैरावाइज रिस्पॉन्स भी हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। पैरावाइज रिस्पॉन्स मतलब
पिटीशन में हर एक स्टेटमेंट में हर एक पैरा का उसका रिप्लाई भी आपको देना चाहिए। और एक्चुअली जब हम देते हैं दैट्स कॉल्ड अ रिटन स्टेटमेंट। अब रिटन स्टेटमेंट के बाद एक और वर्ड आता है दैट्स कॉल्ड अ काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या होता है कि मैंने किसी ने रिकवरी पिटीशन फाइल किया 200 करोड़ का, और एक्चुअली उसने फाइल इसलिए भी किया है कि केसेस क्यों फाइल होते हैं, केसेस 90% केसेस फाइल होते हैं प्रेशर मैकेनिज्म के लिए। डिपार्टमेंट फाइल करती है, कंफ्यूजन में फाइल करती है, जैसे मुझे पता है बहुत बार, आई एम श्योर अग्रवाल सर ये मैं सही भी कर रहा हूँ, बहुत टाइम तो कंफ्यूजन में भी फाइल करती है या नहीं है, चलो फाइल कर दो, फिर देख लेंगे, आएगा तो अपने आप बताएगा कि है क्या मामला, है ना। तो वो भी कहता है कि चलो जी कुछ प्रोफेशनल है, इतने ज्यादा सीए सीएस बढ़ के आ गए हैं, कुछ इनको भी तो कमाई होनी चाहिए ना, तो वो करते हैं कुछ कंफ्यूजन में है ना तो डाल दो, अपने आप आके जवाब देगा। तो इसी तरीके से होता है कि कोर्ट में केसेस भी इसीलिए फाइल होते हैं कि मुझे ना 100 करोड़ रुपए लेने हैं, मैं क्या करूंगा कि 100 करोड़ लेना है ना, तो मैं ना अदर पार्टी क्या करेगी, वही दोबारा केस फाइल कर देगी। अब मेरे से ना 100 करोड़ मांगने वाला है ना, मैं ही इस पे 200 करोड़ का क्लेम कर देता हूँ। अब जब मैंने 200 करोड़ का क्लेम किया तो अब वो सोचेगा क्या करूं, अब वो समझौते में आ जाएगा। तो सिमिलरली अब मुझे मेरे पास 200 करोड़ का पिटीशन फाइल हो गया रिकवरी सूट। अब मैंने क्या किया कि 200 करोड़ का फाइल कर दिया, पैसा तो एक्चुअली मुझे भी लेना है इससे, तो मैं फाइल करूंगा काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम इज लाइक सेम इज अ प्लेंट, वो भी एक तरीके का पिटीशन ही है। तो एक तो ये हुआ। अब एडिशनल प्लीडिंग्स में भी कोई डॉक्यूमेंट रह गया, कुछ छूट गया, उसमें बाद में डॉक्यूमेंट आया, बाद में मैं केस तो फाइल हो गया, बाद में मुझे लगा कि नहीं, अब घर के तिजोरी में मैंने देखा तो 2-4 डॉक्यूमेंट और मिल गया, तो मैंने कहा लो जी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है केस फाइलिंग के लिए। क्योंकि कोर्ट में जब केस फाइल होता है तो मैंने पहले ही बताया कि उसकी एज होती है, एक उम्र होती है। तो उम्र है मान लो कि 5 साल चल रहा है, अब मुझे लगा कि एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, तो नए डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैं कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करता हूँ कि जनाब ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नया मिला है और मैं कोर्ट में फाइल करना चाहता हूँ। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हुआ। फिर एक बार रिज्वाइंडर फाइल होता है। रिज्वाइंडर होता है रिप्लाई का रिज्वाइंडर, रिप्लाई का रिप्लाई मतलब प्लेंटिफ हुआ, प्लेंट का जवाब हुआ रिटन सबमिशन, मतलब पिटीशन हुआ, पिटीशन का जवाब रिटन सबमिशन हुआ, और रिटन सबमिशन का जवाब फिर से रिज्वाइंडर हुआ। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें, मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर एक प्लेंटिफ होता है वो प्लेंट फाइल करता है, उसके बदले जो रेस्पोंडेंट होता है वो रिप्लाई फाइल करता है। रिप्लाई मीन्स रिटन सबमिशन भी होता है। अब रिप्लाई अगर फाइल कर दिया तो जो प्लेंटिफ ने जो बोला था उसको तो उसने सारी बातें काट के रख दिया। अब अगर प्लेंटिफ का फिर से क्या करना है, प्लेंटिफ को उस रिप्लाई का रिप्लाई देना है, दैट्स कॉल्ड अ रिज्वाइंडर। और ये मेरे इन मैटरों में भी होता है, जब जीएसटी का भी काम होता है, अगर हम रिज्वाइंडर फाइल करना चाहिए, हमने एक रिप्लाई दिया, डिपार्टमेंट क्या करती है कई बार और आपसे लिख के दे देती है, तो उसका भी हमें जवाब देना चाहिए। कोई है ना अनओपन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैं कहूँ एक लीगल नोटिस आता है, बहुत बार लोग बोलते हैं अरे लीगल नोटिस आया तो छोड़ो ना, केस तो नहीं फाइल करेगा ना, छोड़ दो इसको, जवाब मत दो। जवाब हमें देना चाहिए। अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है जो भी लीगल नोटिस में लिखा हुआ है हम लोग उसे मान रहे हैं। Now coming to the most important part, that is a relief solve and the prayer. कभी भी कोई प्लेंट फाइल हो रहा है या कोई प्लीडिंग है उसमें प्रेयर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेयर, जो बहुत सारे लोग उसमें छोड़ देते हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो जुरिस्डिक्शन मैंने डिस्कस किया था और दूसरा मैं प्रेयर कर रहा हूँ। प्रेयर बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली डिमांड क्या है। 400 पेज का पिटीशन बन गया और हमें डिमांड का ही पता नहीं, हमने कोई डिमांड मांगा ही नहीं। तो ये भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। अब एक बार ड्राफ्टिंग के लिए हम लोग थोड़ा समझते हैं, ऑल्दो ड्राफ्टिंग पार्ट इसमें कवर मुझे करना भी नहीं है। तो ड्राफ्टिंग में एक चीज बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, मैं पीछे से बार बार बोल रहा हूँ, ड्राफ्ट करते समय एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ना उस पर हमें टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका ड्राफ्ट हो गया, आप अमेंड पिटीशन को, अपने प्लेंट को या रिटेल सबमिशन को अमेंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए जितना टाइम लगाना है, जो भी टाइम लगाना है, हम अपने प्लेंट पे उसमें लगा दें। तो उसको ड्राफ्टिंग का सबसे आसान तरीका है कि हमें बैठे, सोचें और जो भी इंफॉर्मेशन है पहले हम उन लोगों से ले लें और उसके बाद उस पर हम अपनी ड्राफ्ट करें, और ड्राफ्ट करने के बाद वो फाइनल ड्राफ्ट करें। उसको एक मैं कहूँगा कि उसको इंस्ट्रक्शन जरूर ले लें क्लाइंट से, मैनेजमेंट से, कि एक्चुअली हम लोग चाहते क्या हैं, उसको एनालाइज करें
एनालाइज करने के बाद ऑब्जेक्टिव तय करें कि इस पिटीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है या इस केस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर रिसर्च करें। जो भी जजमेंट्स हैं वैसे जुडिशियल बॉडीज के या फिर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या किसी अदर बॉडीज के, और फिर उसके बाद उसमें ड्राफ्ट करके जरूर उसको ड्राफ्ट करके रिवाइज करें, चेक करें और इंश्योर करें कि उसको हम लोग किस तरीके से केस हम आगे हम फाइल करते हैं। और ठंडे दिमाग से जितना भी हो सकता है, जो भी अपनी एनर्जी लगानी है वो हम ड्राफ्टिंग में जरूर लगा लें, क्योंकि वन टाइम काम है। किसी भी केस में 3 से 4 साल 5 साल केस से चलता है। जो पहली ड्राफ्टिंग होती है वही ड्राफ्टिंग अंतिम तक काम आती है, अपीलेट बोर्ड तक काम आती है, सुप्रीम कोर्ट तक काम आती है। अगर मैं कहूं आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल हो रहा है या आपके जीएसटी के सबसे नीचे वाले ऑफिसर की तरफ केस फाइल हो रहा है, क्या पता किसी दिन वो केस आकर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए। उस दिन आप फैक्ट्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लॉ पॉइंट्स पे ही अपील में हमेशा जाता है। तो लॉ पॉइंट्स पे ही आगे डिस्कशन होगा कि किसी लॉ पॉइंट को किसने छोड़ दिया, किसने इग्नोर कर दिया, वही पॉइंट्स को जाता है। मैक्सिमम जो चीजें होती है, जो फैक्ट्स है, दैट फैक्ट्स यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट अमेंड इट। तो वो बहुत ध्यान में रख लेना चाहिए जब भी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है क्लियर है। और अब हम लोग बात करने जाएंगे कोर्ट क्राफ्टिंग एंड कोर्ट एटिकेट्स की। यहाँ तो कोई डिस्कशन है तो एक बार हम लोग ले सकते हैं, जिसमें अभी तक हमने डिस्कस किया प्लीडिंग एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी। आर्ट ऑफ एडवोकेसी में फिर से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आर्ट ऑफ एडवोकेसी ये लास्ट तक चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ सीरियस बात किया। अब एक्चुअली हम कोर्ट रूम में होता क्या है, जज की क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसे अग्रवाल साहब ने बोला, तो वो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग एक बार उस पर बात कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं, कुछ और ऐड करना चाहें कुछ। And you can write in on a chat box also, because I am reading this chat, जो भी यहाँ पे कमेंट आ रहा है, तो अगर आपको लग रहा है तो आप वहाँ भी लिख भी सकते हैं। बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज ओपन योर कैमरा, और अगर कुछ है तो हम बात करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस प्लीज स्पीक मोर ऑन अ प्रेयर। सो प्रेयर में देखिए डिमांड है, मैं ऑब्जेक्टिव क्या है केस का, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैं केस फाइल कर रहा हूँ जीएसटी का, चेक बाउंसिंग का केस मैंने फाइल किया है, जीएसटी केस फाइलिंग प्रोसेस पॉसिबल। ये अग्रवाल सर आप ये देख लीजिएगा इसमें क्या है। सो अगर मैं चेक बाउंसिंग का केस फाइल कर रहा हूँ 138 में, या मैं रिकवरी का केस फाइल कर रहा हूँ, या हो सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल कर रहा हूँ, या किसी भी तरीके का कोर्ट में केस जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि पार्टीशन सूट में फाइल कर रहा हूँ, घर का विवाद है उसके लिए फाइल कर रहा हूँ, या फिर फैमिली डिस्प्यूट है, डिवोर्स के लिए हो रहा है, उस केसेज में हो रहा है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली हम रिलीफ चाहते क्या है, क्या चाहते हैं कोर्ट से, जो हम चाहते हैं वो पार्ट प्रेयर में आएगा। जैसे मैं चाहता हूं कि मैंने आज एक प्रोडक्ट मंगाया, आईफोन मैंने आज मंगाया, आईफोन ना खराब निकल गया। अब या तो मैं पूरा पिटीशन बना दूं कि आईफोन खराब निकल गया, आईफोन में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, सारी चीज मैंने कहानी कह दी। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं मैं नया आईफोन चाहिए, मुझे चाहता हूं जो आईफोन की वजह से मेरा नुकसान हुआ है वो मुझे 1 लाख रुपए उसके लिए मेंटल एगनी एंड हरासमेंट के लिए चाहिए। तो ये क्लियर लैंग्वेज में आई हैव टू राइट इट ऑन द प्रेयर। गॉट इट? ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोर्ट क्राफ्ट और कोर्ट एटिकेट्स की। आप में से मैंने जैसे कुछ लोग कोर्ट रूम गए थे, कुछ लोग 3-4 लोग जो कभी कोर्ट में विजिट किया था, कुछ लोग कोर्ट जाने चाहते हैं और कुछ लोग ये सब सीखने के बाद जाना चाहते हैं। तो अब हम समझ लें कि कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, और सब में एक जैसा ही माहौल होता है और सबकी एटिकेट्स होते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं। कोर्ट के एटिकेट्स हमें आने चाहिए, वो हमें सीखना चाहिए। और सीखने का सबसे बड़ा तरीका है कि कोर्ट रूम में या ट्रिब्यूनल में, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, प्लीज गो एंड विजिट कोर्ट। कोई पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पास लगता है, वो आप लेके, वो भी किसी जो प्रैक्टिशनर है वो आपको हेल्प कर देगा वहां पे एंट्री होने में। तो आप वहां पे विजिट जरूर करना है। विजिट करने से पहले क्या क्या समझना चाहिए वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आप जिस शहर में है कोर्ट जरूर जाइए, 2 घंटे आप बैठ के आ जाओ। जज साहब भी वहां का कोई नहीं पूछेगा आप क्यों बैठे हुए हो, कोई आपसे कोई सवाल नहीं करने वाला है।
ये है कि, और अब अगर कोई कर भी रहा है तो ठीक है, आई केम हियर फॉर लर्निंग, ये हम बोल सकते हैं और कोई मना भी नहीं करेगा। अब हमें करना क्या चाहिए? पहली बार कि गुड परफॉर्मेंस प्रिपरेशन इज एसेंशियल। ये तो सब जगह की बात है। अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, मेरी स्टोरी प्रिपेयर्ड नहीं है, तब तो वो हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्टोरी कैसी होनी चाहिए। एक स्टोरी बताया, बच्चा पैदा लिया, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड आ गई, और गर्लफ्रेंड आने के बाद उसको बच्चा हो गया। अरे ये कैसी कहानी है? बच्चा गर्लफ्रेंड से हुआ या फिर शादी हुई उससे हुआ? एक स्टोरी ऐसी है कि नहीं, उसकी बच्चे ने कॉलेज में पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड हुई, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, फिर शादी हुई, उसके बाद बच्चा हुआ। ये स्टोरी अच्छी स्टोरी है। तो ये जो है कि जो स्टोरी है वो क्लैरिटी रहना चाहिए, और स्टोरी मेरी खुद की लिखी होनी चाहिए। इट मीन्स द पिटिशन मस्ट बी ड्राफ्टेड बाय माई सेल्फ, पिटिशन मस्ट बी वेटेड बाय माई सेल्फ। अगर मैंने ड्राफ्टिंग नहीं किया तो एटलीस्ट मैं उसकी वेटिंग करूं। आई एम श्योर वेटिंग आप सबको पता है कि उसको चेक करना, एटलीस्ट मैं उसको चेक करूं। इससे क्या होता है कि मुझे पूरी जो स्टोरी लाइन है ना, वो मुझे समझ में आती है कि एटलीस्ट मेरे पिटिशन में है क्या। सेकेंड वन, और जब मेरी पिटिशन मुझे पता है, मैंने ड्राफ्ट किया है, मैंने चेक किया है, तो मैं इजीली उसको जाकर वहां पे परफॉर्म कर सकता हूं और बोल सकता हूं। सेकेंड चीज है, बी पंक्चुअल एंड अराइव ऑन टाइम। कोर्ट रूम में आपका टाइम आपको पता होना चाहिए कि क्या है कोर्ट रूम का टाइम। 10 बजे है तो ट्राई कीजिए कि हम कोर्ट रूम है या ट्रिब्यूनल है, जिस जहां भी आप जा रहे हैं, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि टाइम से पहले, हाफ एन आवर आपको टाइम से पहले वहां पे पहुंच जाना है। क्योंकि हाफ एन आवर पहुंचेंगे तो क्या पता वहां की लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट खराब हो सकता है, पैदल चढ़ के जाना पड़े, हो सकता है कि वहां पे आपको, वहां का, वो पहली बार जा रहे हैं तो कोर्ट का पता नहीं लगे, हो सकता है कि वहां पे अब आप कोर्ट रूम में पहुंचे हैं, बाथरूम खराब है, आपको बाथरूम आई है, बाथरूम आपको जाना है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। आप, हो सकता है बाइक से गए हैं, आपके बाल खराब हो गए हैं और वहां पे आपको बाल ठीक करना है, हो सकता है शर्ट आपका खराब हो गया है, तो आपको वहां पे जाना है, पंक्चुअल जाएंगे। हो सकता है आपने पिटीशन नहीं पढ़ा हो, तो वहां पे जाने के बाद मुझे अपने आप को रेडी रखना है, तैयार रखना है, बेस्ट दिखना है, मुझे स्मार्ट दिखना है वहां पे, और मुझे पिटीशन जो मैं लेके जा रहा हूँ, जो मैं काम ले रहा हूँ, उसको मुझे रिवाइज भी करना है। और जब हम ये दोनों चीजें रिवाइज भी कर लेते हैं, वो मेरे पास 30 मिनट्स का टाइम काफी होता है। वहां जाके कॉज लिस्ट भी चेक करना है। आप में से कॉज लिस्ट पता है सभी को? कॉज लिस्ट क्या होता है कोर्ट की भाषा में? जीएसटी में कॉज लिस्ट कुछ नहीं होता है, मतलब बाकी क्या होता नहीं पता मेरे को तो नहीं। हाँ जी। सो अभी कॉज लिस्ट क्या होता है? किसी कोर्ट रूम में जाते हैं तो वहां पे जितने भी मैटर होते हैं वो ना सीक्वेंस में आता है। मेरे पास आज लिए कि किसी कोर्ट रूम में या किसी जुडिशियल बॉडीज में 50 केसेस लगे हुए हैं जज साहब के पास में। तो 50 केसेस का ना सीक्वेंस बन जाता है कि पहले नंबर पे ये लेंगे, दूसरे नंबर पे लेंगे, तीसरे नंबर पे लेंगे, और 50वें नंबर पे ये लेंगे। तो ऐसे क्या होता है ना, वो सीक्वेंस आपके पास नोटिस बोर्ड पे आ जाता है, या फिर ऑनलाइन, आजकल मैक्सिमम कोर्ट ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन वो एक दिन आपके पहले कोर्ट के जो वेबसाइट है वहां पे डाल देते हैं। जैसे ई कोर्ट सर्विसेज है, किसी ट्रिब्यूनल का है, confonet.nic है जो कंज्यूमर फोरम का है, एनसीएलटी के लिए एनसीएलटी का है, उसी तरीके से टैक्स ट्रिब्यूनल में भी जो है वहां के लिए है, कैट है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए है। तो वो कॉज लिस्ट वहां पे डल जाता है, मतलब लिस्ट डल गई, आज कौन सा केस पहले लेने वाले हैं, तो वो सीक्वेंस डल जाता है। सीक्वेंस डलने से आसानी क्या होती है कि हमें पता होता है कि हमें ना मेरा नंबर कब से आने वाला है। कि कोर्ट रूम में कॉल होता है आइटम नंबर 15, कई बार वो लोग अंदर बोलते भी नहीं है राम वर्सेस श्याम। तो राम वर्सेस श्याम में पता नहीं वो जो बंदा बोल रहा है वो पान खा के बोल रहा है, वो मुंह में खैनी दबा के बोल रहा है या कुछ और दबा के बोल रहा है, पता नहीं, तो उसकी भाषा गड़बड़ होती है। बट आपको ये है कि आपको नंबर जरूर याद आता है, सुनाई देता है ठीक से, आइटम नंबर 15, आइटम नंबर 15, आइटम नंबर 16। सो एटलीस्ट वी पीपल कैन प्रिपेयर कि मेरा नंबर इस पे आने वाला है, और मैं जब इसके लिए मेरा नंबर 15 है, 10 है, 50 है, तो मैं अपने टाइम को बांट लेता हूँ। क्योंकि एक मैटर में मान लीजिए कि 5 मिनट टाइम लगा, 2 मिनट टाइम लगा, ये जब हम कोर्ट रूम में बार बार जाने लगेंगे ना, तो हमें पता हो जाएगा कि एक मैटर में कितना टाइम लगता है, ये भी पता लग जाता है। ये भी होता है कि किसी एक मैटर में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे कि लॉ पॉइंट्स पे डिस्कशन होते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर मैटर पे 2-2 दिन तक बहस होता चला जाता है, 2 दिन 3 दिन, और पता लगा आपका आइटम नंबर 3 है और आइटम नंबर 1 की बहस हो रही है। अब आपको पूरे दिन वेट करना पड़ा,
आइटम नंबर अगले दिन पूरा टाइम वेट करना पड़ा, और आप जैसे उठ के बाथरूम गए आइटम नंबर 3 कॉल हो गया, और वो आप नहीं है तो आप 3 नंबर खत्म भी हो गया। तो ये कई बार लोग चार्ज करते हैं फीस ना, कि जब आप बड़े ट्रिब्यूनल की फीस जब चार्ज करते हैं तो हमारी वेटिंग टाइम भी होती है, जिसके लिए हमें चार्ज करना पड़ता है। हमें अपने आप को रोक के रखना पड़ता है कि मेरा आइटम नंबर हो सकता है 2 मिनट में आ जाए, और अगर फिर से चला गया, 56 मैटर आर लिस्टेड ऑन बोर्ड और माई आइटम नंबर 3 एंड आई मिस्ड इट इन एनी सर्कमस्टांसेस, अब वो 56 नंबर जब खत्म हो जाएगा ना, तब दोबारा फिर से फाइल लेते हैं। कई बार जजेस फाइल लेते भी नहीं है, बोले नहीं जी अब डेट डाल दो। डेट क्या पड़ती है, कई बार 6 महीने की पड़ जाती है, कई बार 8 महीने की पड़ जाती है। अब आपके क्लाइंट, आप बाथरूम गए हैं या किसी और रीजन से गए हैं, वो तो आपको बस आप समझ लो क्या करने वाला है। तो हमें करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, कि हमें वहां पे कॉज लिस्ट चेक करना है, अपने जूनियर को या अपने किसी साथी को साथ में रखना है, अगर मैं कभी कोर्ट रूम से किसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूं तो। Yes, so Mr. Jinesh asked a question that how can we access the court online, and is it possible that common citizen watch the cases hearing online? Yes, common people can watch the cases online. Mostly the High Court, Supreme Court, NCLT, these are the online these days. So you can go there, और लिंक होता है वहां पे, लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आप वहां पे अपीयर हो सकते हैं। वहां पे हमें करना यही है कि बस कोर्ट क्राफ्ट ध्यान में रखना है, ये नहीं कि हम अभी फोन उठाया और हम बात करने लगे और अभी हमने अपने कैमरे को ऑन रखा, ये सब हमें नहीं करना है, और आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम में। सेकेंडली द ड्रेस अप्रोप्रिएटली विद डिग्निटी। आप ड्रेस जो वहाँ कोर्ट रूम का ड्रेस है वो ड्रेस आप पहनना चाहिए हमें, और उसी ड्रेस में हमें जाना चाहिए। अदरवाइज किसी और ड्रेस में जाते हैं तो अलाउ नहीं करते हैं। अब कई बार होता है कि हम लोग एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, या कई बार ऐसे होता है कि नहीं मैं तो प्रोफेशनल हूँ, तो जो भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनकी प्रोफेशनल बॉडीज ने भी ड्रेस आपको बताया हुआ है कि आपको ड्रेस क्या पहन के जाना है अगर आप ट्रिब्यूनल में अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हो या कंपनी सेक्रेटरीज के लिए हो। या अगर हमें इनमें से कुछ भी नहीं है और हमें लगता है कि नहीं मैं अभी मेरे पास वो डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी मुझे अपीयर होना है, तो देखिए सबसे बेस्ट ड्रेस होता है कि व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, ये बेस्ट ड्रेस होता है, ये पहन के जाना चाहिए। अब ये नहीं कि हम किसी टी शर्ट में चले गए या हाई कॉलर के टी शर्ट में हम चले गए और वहां पे जाकर हम वहां पे अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में। बी साइलेंट, बो रेस्पेक्टफुल भी, वहां पे कोर्ट रूम में साइलेंसी बना के रखना चाहिए, सिर्फ सुनिए, ट्राई करिए। वहां पे जब भी कोर्ट रूम में जाना होता है तो आप जो जज हैं, जज के पास कोर्ट की मिलॉर्ड हम लोग बोलते हैं, इसलिए कि उनको हम लोग जज मानते हैं। तो जब भी कोर्ट रूम में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते समय इस तरीके से हमें बो करना है फॉर एवरीवन। ये नहीं कि हम लॉयर हैं या हम प्रैक्टिशनर हैं, तब भी ये एक रिस्पेक्ट है जो उस चेयर को हम लोग दे रहे हैं, उस इंसान को नहीं दे रहे हैं, उस चेयर को दे रहे हैं। तो जाते वक्त कोर्ट में इस तरीके से हमें मूव करना ही है, और कोर्ट से हमें बाहर निकलना है तब भी हमें इस तरीके से मूवमेंट करनी है। तो ये हुआ। एंड फोर्थ थिंग, व्हाइल वेटिंग सिट एंड बी क्वाइट। जब भी आप कोर्ट रूम में जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो कई बार लगता है कि वहां पे 50-100 लोग वहां बैठे हुए हैं, तो जज मुझे क्या नोटिस कर रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं कि मेरी क्या, जो 2 वकील वहां खड़े हैं या जो 2 प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल खड़े हैं, जज उन्हीं को नोटिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जो भी एक वहां पे इंसान है, क्योंकि आप अपनी जगह सोचिए, आप उस चेयर पे ऊपर बैठे हैं और आपको अगर वहां पे अगर आप वहां पे जज हैं और आपको वहां पे बैठे हैं, तो जितने लोग वहां पे दिख रहे हैं सामने, सब पे नजर जाती है। अब जब सब पे नजर जाती है तो जज आपको वॉच कर रहे होते हैं, हर मूवमेंट पे आपको वॉच कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना यही चाहिए। तो इसलिए वहां पे जाकर जो मेरी एक्टिविटी होनी चाहिए ना, उस एक्टिविटी को ऑलवेज वी शुड बी यू नो द रेस्पेक्ट है जजेस का। ऐसा नहीं कि हम कोर्ट रूम में गए, मैंने फोन उठाया और मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया, इस तरह का नहीं करना। अवनीश म्यूट हो गया। हाँ, तो हमें ना इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पे क्वाइटली वहां पे खड़े होके उनकी बात सुन लें, और कि ऐसा नहीं गया तो सीधा फोन उठा लिया और बात करने लगे, या मोबाइल पे हम चैटिंग कर रहे हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अब मेरा नंबर आया, मूव डायरेक्टली एंड क्विकली टू द बार ऑन द टेबल। जब आप कोर्ट रूम में जाते हैं तो वहां पे एक तरफ प्लेंटिफ का होता है, दूसरी तरफ डिपेंडेंट का होता है, और आपका नंबर कॉल हुआ आइटम नंबर 15,
15, अब आप वहाँ पे ये ध्यान रखा कि 15 है, आप धड़ल्ले से अंदर घुस जाते हैं हम लोग, ये नहीं करना है। ध्यान में रखना मेरा आइटम आने वाला है तो मैं स्लोली वहां तक पहुंचूं और जैसे आइटम है मैं अपना टेबल पकड़ लूं वहां पे और वहां पे खड़े होके अपनी बात में स्टार्ट करूं। कॉल्ड एंड सिट विद द बार टेबल इन ऑर्डर टू द सीनियरिटी, वहां ध्यान में रखना है कि मेरे सीनियर हैं तो उसी के सीनियरिटी में खड़े हो जाएं। कई बार होता है कि नहीं हम लोग खड़े हैं तो मेरा जूनियर आगे आ गया, तो उन चीजों का भी हमें वहां पे ख्याल रखना चाहिए। कोर्ट रूम में बात करते समय जजेस के लिए एक चीज और भी बड़ा कॉमन है कि वहां पे उनकी वो जैसे वो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इनमें मैं बताऊं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर लूंगा और बहुत सारी चीजें भी हम बात करते हैं। तो कोर्ट में इन्फ्लुएंस ना वो लोग बातों से होते हैं और डॉक्यूमेंट से होते हैं। कोर्ट कभी भी आप कोर्ट रूम में आपने देखा हो एक कोर्ट अंधा होता है ना, और एक लेडी का होता भी है फोटो की आंख में पट्टी होती है। ये किस लिए होता है? कोर्ट किसी चीज पे आपने क्या आपके पिटीशन में लिखा है, क्या आपने अपने रिप्लाई में लिखा है, वही चीज ही सिर्फ वहां पे मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता है उधर, और उसी के बेसिस पे कोर्ट अपना फैसला लेती है। अब कोर्ट रूम में हमें कितना बोलना है और क्या बोलना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें कोर्ट रूम में हम जाते हैं तो जज इज द फोकल पॉइंट। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, या जो लोग कोर्ट अपियर होते हैं या जो नहीं हुए हैं उन लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि दो लॉयर्स मिलकर लड़ाई कर लिया वहां पे, या फिर अननेसेसरी कोई लॉयर है वो जाकर वहां पे चिल्ला रहा है जिसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो वैसी कंडीशन में वहां पे हमें बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। हमें एक तो बात करना है, वो सिर्फ जज इज द फोकल पॉइंट, ये नहीं कि अदर काउंसिल हैं वो मेरे लिए फोकल पॉइंट्स हैं। इट मीन्स कि मेरा बात करने का है, मैं अपने साइड वाले जो एडवोकेट हैं या जो भी काउंसिल हैं या फिर प्रैक्टिशनर है, उस प्रैक्टिशनर से मुझे बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ जज साहब को बताना है कि मेरा पिटीशन क्या है। जज साहब को ही बताना है कि द लर्नेड काउंसिल या लर्नेड फ्रेंड जो मेरे दूसरे साइड से अपियर हो रहे हैं वो ये बात गलत कह रहे हैं या वो बात सही कह रहे हैं, जो भी कहना है वो जज साहब को ही बताना है। ये नहीं कि मेरे दूसरे वाले को बोलना नहीं आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ये तो बकवास बोल रहे हो। तो ऐसी एक तो लैंग्वेज यूज नहीं करना है, जो भी यूज करना है लैंग्वेज बहुत ही डिग्निटी के साथ लैंग्वेज यूज करना है, और जज साहब से ही बात करना है। ट्राई ये करना है कि जज साहब का मूड भी जरूर देखें हम, कि उनका मूड कैसा है। हो सकता है किसी दिन हम मैटर में गए हैं और लाइक ऑनरेबल जज सेज नो टेक ए डेट, आई हियर यू बाय टुमारो और नेक्स्ट डेट ऑफ मीटिंग। और वहां पे हम लोग तैयार हो जाते हैं, नहीं आज तो हम लोग गए हैं तैयार होके ना, तो आज तो मुझे बोलना ही है। ट्राई कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में अगर मूड नहीं है उनका, अगली डेट पे सुना दो उनको आप, क्योंकि हम लोग गए हैं रिलीफ लेने के लिए। अगर उनका मूड नहीं है और हमने उनसे डिस्कस किया या और क्यों किया, तो हो सकता है हमारे अगेंस्ट में भी डिसीजन हो जाए। तो ट्राई यही करें कि जो आर्गुमेंट्स हैं, प्रेजेंट योर आर्गुमेंट बट नेवर आर्ग्यू विद द जजेस, रिमेन पोलाइट एंड courteous टू द जजेस ऑल द टाइम। आप गुस्सा आ भी रहा है तब भी गुस्से को दबा के रखना है, और वहां पे किसी भी तरीके का वहां पे एग्रेशन नहीं लाना है। मेक योर सबमिशन बट डोंट बी रूड। अपनी जो बात है हमें कहनी है वहां पे, कभी ये नहीं कि आपने क्यों नहीं किया। जैसे अभी कभी कई लोगों ने अभी टीवी एक वायरल भी हुआ था वीडियो, एक किसी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का था, आप लोगों ने कई लोगों ने वॉच भी किया होगा। वहां पे जज साहब कुछ बोल रहे हैं, वकील साहब कुछ बोल रहे हैं, दोनों में लड़ाई हो गई। तो ये सिचुएशन क्या है ना, यहाँ पे नुकसान क्या है कि आपके क्लाइंट का, वी आर प्रोफेशनल, हमें जहां भी बिहेव रखना है वो प्रोफेशनली बिहेव रखना है। लग रहा है कि आज उनका मूड खराब है, मत सुने तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगली डेट पे सुना देंगे। क्योंकि जब कोर्ट में गया है तो ये अब तो सब कुछ खराब होने के बाद ही कोर्ट में जाता है, तो अगली डेट पे हो जाएगा। हमें वो जिद नहीं करनी है, नहीं आज तैयार होकर आया हूं तो मैं आर्ग्यू करूंगा ही करूंगा। एंड बी योरसेल्फ एंड ईट इज ऑलवेज प्रॉपर। Now coming to the some critical part of the the code crafting, be familiar with the code technology and required। जो कोड की टेक्नोलॉजी है वो हमें ध्यान में ऑलवेज रखनी चाहिए। कोड की टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी मीन्स क्या, वहाँ पे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वहाँ की फाइलिंग कैसे होती है। हो सकता है कि वहाँ पे मेरे वकालतनामा या मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी तुरंत सबमिट करने हैं या नहीं करने हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है वहाँ पे हियरिंग ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में हो। हाइब्रिड मीन्स कि कुछ लोग ऑनलाइन अपियर हो रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन अपियर हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ है तो हमें ट्राई ऑलवेज करना चाहिए कि हमें ऑफलाइन मोड पे अपियर होना चाहिए।
ऑब्जर्व एंड नो द हियरिंग प्रोसीजर। वहाँ पे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने पहले ही बताया था कि कोर्ट विजिट द कोर्ट रूम। अभी लगा कि मेरी तो उम्र हुई, मेरी 50 साल उम्र हो गई, अभी मैं कोर्ट में जाके क्या सीखूंगा। अभी तब 50 साल की उम्र में जब आप जीएसटी सीख सकते हैं, 50 साल की उम्र में नए जीएसटी पे आप काम कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल की आप तैयारी कर सकते हैं, तो वहां भी जाकर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने में और कोर्ट प्रोसीजर को हियर करने में जितनी लर्निंग आने वाली है वो शायद किसी वेबिनार या किसी सेमिनार या किसी वर्कशॉप को सुन के नहीं आने वाला है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वही हम ज्यादा सीख पाते हैं। स्टैंड प्रॉम्प्टली व्हेन मेकिंग एन ऑब्जेक्शन। कोर्ट रूम में कभी भी खड़े हो रहे हैं तो आपकी स्टैंड प्रॉपर्ली, ये नहीं कई सारे लोग हाथ इधर रख दिया, पैर उधर रख दिया, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्टैंड होके अगर कभी ऑब्जेक्शन भी करना है तो अदर पार्टी अगर कुछ ऐसा कर रही है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है और लगता है कि आपको ये लॉ के अगेंस्ट है या मेरे बारे में गलत बात बता रहा है, तो आपको ऑब्जेक्शन भी बहुत ही पोलाइट मैनर में करना है। नो हाउ टू एड्रेस द जजेस आउटसाइड द कोर्ट। नेवर कम्युनिकेट विद द जज और कोर्ट अबाउट द केस। बाहर भी अगर कभी कोर्ट जजेस से मिल रहे हैं, ट्राई कीजिए कि पर्सनल केसेस के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे जजेज ऐसे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से भी कल ट्रिब्यूनल बनने वाली, आप में से भी कोई जज बन के वहां पे जाए, तो जजमेंट जब भी हम लिखते हैं तो वहां पे ना किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। इसलिए बहुत सारे जो जजेज हैं, जो सीनियर जजेज हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के, जो अच्छे जजेज हैं, वो कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कभी वो टीवी नहीं देखते हैं। अगर उससे रिलेटेड अगर कभी चल रहा है और हाई प्रोफाइल केस कभी वो कर रहे हैं तो उस दौरान वो कभी टीवी नहीं देखते हैं, कभी वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कभी ऐसे लोगों से मिलते नहीं है जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर सके। कि जब भी इन्फ्लुएंस में होगा तो उस सिचुएशन में जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर गलत तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। ऑर्डर जजमेंट्स में होता गया है कि किसी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, और ये तभी होगा। और वो जजेस भी, जो अच्छे जजेस हैं, वो इस बात को समझते हैं। और बीइंग ए प्रोफेशनल हमारी भी ड्यूटी है कि अननेसेसरी हम लोग बाहर जाकर अपने मैटर के बारे में उस तरह की बात नहीं करें। अवॉइड डिस्कसिंग द थिंग्स पब्लिकली अबाउट द केस ऑफ योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट के केसेस को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, बाहर पब्लिक में बताएं चाहे हमने कितना भी अच्छा किया है, बिकॉज यू हैव साइन एनडीए। अगर आपने साइन नहीं किया है तो भी आपने जो वकालतनामा या फिर जो भी आपने पावर ऑफ अटॉर्नी लिया है उसमें कहीं ना कहीं ये लाइक दिस आता होगा। So now coming to the few of the points which is very much required in the courtroom while we are appearing. I'm considering the appearing means courtroom means I'm considering that you are considering that courtroom means the tribunals, quasi judicial bodies, and even the the GST officers, वहाँ के भी जो ट्रिब्यूनल या वैट की जो ट्रिब्यूनल्स बनी होगी उन सबको मान के चलना है, क्योंकि अपीयरेंस मीन्स अपीयरेंस। तो जब भी अपीयरेंस कर रहे हैं, जॉट डाउन द रिलेवेंट पॉइंट ऑन द सेपरेट शीट ऑन अ पेपर टुगेदर विद द रिलेवेंट पेजेस ऑफ द कंपाइलेशन। इट मीन्स कि मेरी पिटीशन, कई बार जो पिटीशन हो जाती है वो पिटीशन हो जाती है 400 पेजेस की, 500 पेजेस की, या हो सकती है कि वो 10 पेजेस की भी हो। अब क्या ये पॉसिबल है कि 10 पेज को भी मैं पूरा याद रख सकूं? नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंटर बनाते हैं, कहीं भी बोलना होता है तो, या भी कहीं आप लोग सुन रहे हैं, या कई बार आप किसी वेबिनार में बोल रहे हैं, तो करते क्या कि आप पॉइंटर बनाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको पॉइंटर बनाना है। पॉइंटर बनाने को एक सेपरेट शीट अलग से लगा के रख लेनी है, उसमें रेलिवेंट पेजेस नंबर, क्योंकि जैसा आपको जब भी हमें बताना होगा कि मैंने ना प्लेंट में अपना जीएसटी के फलना डॉक्यूमेंट फाइल किया है, दैट विल बी द एनेक्सर नंबर 5 पेज नंबर 62। प्लीज सी, अब उनको पलटना है ना, तो उन्होंने आपकी पेज और उनकी पेज दोनों की इकट्ठी होनी चाहिए, मतलब आपकी पिटीशन और उनकी पिटीशन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कीप द कॉपीज ऑफ द जजमेंट टू बी रिलाइड रेडी फॉर द कोर्ट और फॉर योर ओपोनेंट। अगर कभी आपके पास जजमेंट फाइल करना है या फिर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देना है, आपको एक कॉपी दूसरी पार्टी को सप्लाई करनी होती है, तो आप हमेशा उसको रेडी रखना चाहिए कि दूसरी पार्टी को वही डॉक्यूमेंट हम इजीली दे सकें। हमेशा काम करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर क्लाइंट, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद योर क्लाइंट विशेज एंड इंस्ट्रक्शन। कभी भी अपना हमें दिमाग तो लगाना है और हमें सजेस्ट भी करना है अपने क्लाइंट को, बट विदाउट इंस्ट्रक्शन वी शुड नॉट डू एनीथिंग। दिस इज द जनरल रूल ऑफ द अपीयरेंस। अदरवाइज one day your client will come and say that no, I have not given your instruction, why you are appearing it?
and sometime it also happens the judges are say कि नहीं आप ये काम कर लो, अभी बताओ कि इसमें करना क्या है. In this situation, you always say to the judges and the the tribunal judges also कि my lord, you are requesting to give me time to take instruction from our client, क्योंकि वो टाइम आपको दे भी देंगे, क्योंकि it's not my case, I am representing my client, I cannot decide myself on behalf of the client. So इंस्ट्रक्शन लेने के लिए जो टाइम है वो क्लाइंट से जरूर लेना चाहिए. अगर जज साहब आपको मिड में कह रहे हैं, कई बार प्रेशर हो जाता है कि नहीं अभी बताओ जी करना क्या है इसमें, मैं कैसे बताऊं जी, इट्स माय क्लाइंट मैटर, सो आई विल टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट एंड आई विल डू इट. और कई बार जब फ्यूचर में आपको अंदाजा है कि नहीं ये सिचुएशन भी आ सकती है, तो टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट इन एडवांस, पहले से हम एडवांस में इंस्ट्रक्शन ले लें उनसे. आर्गुमेंट है जब हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट का गोल क्या है, फाइनली क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, तभी सक्सेसफुल आर्गुमेंट होगा. जब तक मुझे एक्चुअली गोल पता नहीं हुआ कि मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, और अचीव क्या करना चाहता हूँ वो मैंने लिखा हुआ है कहाँ पे, प्रेयर में. तो दीज आर द साइंस, बी क्लियर विद योर प्रेयर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस. मिस्टेक दैट इज स्पॉइल योर केस. The point of the writing and the brief will help the judges to arrive in the correct. इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो प्रेयर वाली पार्ट में मैं फिर से आ जाता हूँ, प्रेयर जो लेना है हमसे वो और कंक्लूजन दोनों में डिफरेंस हो जाता है. तो जब भी हम केस को जैसे आपने फिल्मों में भी सुना होगा या देखा होगा कि आप ना कंक्लूडिंग रिमार्क्स कीजिए अपने मैटर में. तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स का यही होता है कि जैसे आप मुझे ना अब 200 करोड़ रुपए से लेने हैं, तो 200 करोड़ क्यों लेने हैं, दैट इज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स. दूसरी साइड के लॉयर या जो प्रोफेशनल क्या आर्गुमेंट है उसको लिखना चाहिए और उसको जवाब के लिए रेडी रखना चाहिए. जो फैक्ट्स है आपके फैक्ट्स वो तो क्लियर ही हो गए, जो अदर साइड भी फैक्ट्स हैं वो भी अगर जो भी उनका हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनकी जब बारी आई और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया आपने कुछ सुनना ही बंद कर दिया. तो ट्राई कीजिए कि उनकी बात प्रॉपर सुने और उनकी पार्ट जब हम प्रॉपर सुनेंगे तो हम लोग उस आर्गुमेंट के स्टेज पे हम उनकी रिप्लाई भी प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं. Argument are addressed in a very coherent manner and consist with the written pleadings. जो भी मेरी argument होगी that will be on the based on my plaint, based on my written submission, based on my evidence. ये नहीं कि मैंने आज आया कि नहीं जी फलना न्यूज़पेपर में तो ये आया ये भी मैंने डाल दिया. Whether that newspaper is a part of your plaint or not, if it is not part of your plaint, then you cannot discuss about this newspaper cutting and all. अगर कोई नई चीज आपको आ गई वो आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं. whatever is in your plaint, whatever is in your written submission, वही आपको वहां पे लिखना है. कई बार अगर जजेस का व्यू भी अलग हो जाता है जब वो बात कर रहे हैं, तो उन चीजों में ना आपको और आपको लगता है कि नहीं ऑनरेबल जज को मुझे मना करना है और आप उनकी व्यू से सहमत नहीं है, तो उनको बहुत ही पोलाइटली बहुत ही ग्रेटिट्यूड मैनर में उनको जवाब दीजिए और उनको बताइए कि जैसा आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, बट एक्चुअली द लॉ सेज दिस वन. बिकॉज हम लोग जो होते हैं हम लोग ही ऑनरेबल जजेस को गाइड करते हैं अपनी तरफ से कि ये लॉ में ये लिखा हुआ है और उसके रूल्स में ये लिखा हुआ है, रेगुलेशंस में लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजेस उसके बारे में फैसला करते हैं. और ट्राई ये करना चाहिए कि हमेशा जब भी हम पिटिशंस कोई फाइल कर रहे हैं उस पर केस लॉज जरूर लें. केस लॉज इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और केस लॉज लेते समय जो भी हाईएस्ट कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का या जजमेंट है, वो उसको ज्यादा माना जाता है. अगर हो सकता है कि ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कहीं ओवर रूल तो नहीं हो गया है. इसके लिए बड़े सारे टूल्स हैं, मनपात्रा और SCC ऑनलाइन, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम इसको दे सकते हैं. इनकम टैक्स के मैटर, GST के मैटर भी बड़े सारे डिसाइड होते हैं, डेली बेसिस पे कोर्ट रूम में सुने जाते हैं. टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे अलग से जज अपॉइंट हुए हैं जो कि सिर्फ GST, इनडायरेक्ट टैक्सेज और डायरेक्ट टैक्सेज के मैटर अलग अलग करते हैं. कंपनी लॉ जजेस हैं जो कंपनी लॉ के मैटर करते हैं. सिमिलरली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो देयर द जजेस आर वेरी मच एक्सपर्ट इन द GST.
जो जीएसटी में जिनकी पूरी एक्सपर्टीज है वही लोग जीएसटी के मैटर वहां पे हैंडल करते हैं, तो उनकी अपनी एक्सपर्टीज तो है ही, लेकिन यहाँ पे जब भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि आप आज की डेट में 100% अपडेटेड हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो जो लॉ है वो जस्ट आपको पता होगा, जो नए जजमेंट्स हैं वो जस्ट आपको पता होगा। आपको ये मान के चलना है जस्ट आपको कुछ भी नहीं पता है, जो मैं गाइड करने वाला हूँ वही जस्ट आपको पता है, और इसके अलावा जस्ट आपको कुछ भी नहीं पता है। Whenever you are drafting any plan और आर्गुमेंट करते समय एक ट्राई यही करना चाहिए, ऑलवेज यू प्रिपेयर योर रिटेन आर्गुमेंट इन रिटेन मैनर। आप पॉइंटर बना लो 10, 20, 25, 50, क्योंकि मान लीजिए पिटीशन आपका 400 पेज का है, तो आपको अपने को उसको सिनॉप्सिस बनाना है, और रिटेन आर्गुमेंट 3, 4, 5 पेज में आपको रिटेन आर्गुमेंट 400 पेज का बना के एक कोर्ट में फाइल कर देना है। ये मेरी तरफ से मेरा आर्गुमेंट है। अब ये क्या है कि ये ना पॉइंटर हो गया, वहां पे जज साहब को हमने ना इजी दे दिया कि अब आपको ना इसी बेसिस पे फैसला करना है। अब 4 पेज पढ़ना आसान है, 400 पेज पढ़ना मुश्किल है, तो मुझे क्या देना है ना, ईज देना है। जितना आसान करेंगे, जितना इजी काम देंगे, जितना इजी तरीके से हम उनको बताएंगे जज साहब को, वही हमारे लिए फायदा करने वाला है। Now, one thing is really also very important, that the voice modulations while argument is really very important. कुछ लोग होते हैं वहां पे unnecessary चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ लोग होते हैं बहुत स्लो बोलते हैं, इतना स्लो बोलते हैं कि वो ना आवाज ही नहीं पहुंच पाती है। कोर्ट रूम में जब अगर आप फिजिकल आप लोग विजिट किया, जिन लोगों ने विजिट किया, डिस्टेंस कम से कम 2 से 3 मीटर का तो होता ही होता है। कई लोग इतना बोलते हैं कि उनके बगल वाले को सुनाई नहीं दे। हर जगह तो कैमरा है, हर जगह माइक तो है नहीं, तो मेरी आवाज को भी इतनी तेज रखनी है और वॉइस भी इतना अच्छा रखना है कि मैं जो बोल रहा हूं ना, इफेक्टिव मैनर में, बड़े आसान तरीकों में जज साहब के कान तक मेरी बात पहुंच जाए। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द आर्ट ऑफ एडवोकेसी का ये भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोग बोलते हैं और आवाज पहुंचती नहीं है। कोर्ट रूम में जब भी जाते हैं, प्लीज कैरी योर ओन बेयर एक्ट। बेयर एक्ट भी ऐसा जो कि ऑथराइज्ड हो, ऐसा भी नहीं किसी तरह का बेयर उठा लिया। बुक हो, मैनुअल हो, स्टैट्यूट्स हो, डिक्शनरी हो, ये सब कुछ ऐसा हो जो कि ऑथराइज्ड का मतलब ये होता है कि जो बड़ी पब्लिकेशन का हो, जो कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने उसको डिबार नहीं किया होगी। कई बार ऐसे भी होते हैं कि बुक्स आई और कुछ का कुछ उसमें लिख दिया, तो ट्राई ये करना चाहिए कि इसको रेफर नहीं करें। और जनरली बुक्स रेफर भी नहीं होते हैं, वहाँ बेयर एक्ट रेफर होता है, वहाँ पे जजमेंट रेफर होते हैं, वहाँ पे रूल्स रेफर होते हैं, रेगुलेशंस रेफर होते हैं, या अगर मीनिंग कई बार हम नहीं निकाल पाते हैं किसी चीज का, तो डिक्शनरी जो वहाँ पे होती है, उस डिक्शनरी की मीनिंग भी वहां पर हम लेकर चलते हैं। कई बार आप लोगों ने ये भी होता है कि एक मैटर में 2-3 लोग अपीयर हो रहे हैं, लगातार दोनों तीनों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। डिसाइड इट हु इज अ सीनियर एंड हु इज लीडिंग दिस मैटर। हो सकता है आपका जूनियर ही लीड कर रहा हो, बट जूनियर को बोलने दो, आप मत बोलिए। ये नहीं कि अब बार बार आप उसको कान में कुछ कुछ बोल रहे हैं, वहां जज साहब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये आपका जब भी जजमेंट आएगा, ये आपके निगेटिव में इस तरह की चीजें आ सकती है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड अबाउट द कोर्ट क्राफ्ट एंड प्लीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इस पे हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे अगर कुछ बात है तो हम लोग उस पर अब कर सकते हैं। तो किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, जहां जीएसटी से रिलेटेड कुछ अगर हो। पीपीटी चाहिए इनको? दैट विल गिव, दैट्स नॉट एन इशू। चलिए, पीपीटी मिल जाएगा आपको। किसी का कोई सवाल, जो प्रैक्टिकली कोई सवाल, आप लोग कोर्ट रूम गए हो, वहां पर कोई सवाल हो सकता है, देखिए जीएसटी से हो, किसी और में हो, क्योंकि आज हम जब प्रैक्टिशनर है तो मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं और तरह की बात पूछते हैं। तो मेरे इसमें अगर आपकी कोई सवाल आती है, सो इफ आई कैन कंट्रीब्यूट। Sir, kindly discuss about the voice modulation in the courtroom, because when we are arguing before the judges, then sometimes they say that कि ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, and they हमारे जूनियर को जनरली वो बोलते हैं जो एज में छोटे हो, मतलब जिनको वो जानते नहीं है, and we are representing once in a month, so in that situation, sir. देखिए, ये क्या है कि यहाँ पे एक तो जानते हैं और नहीं जानते हैं, इसको तो हमें अपने दिमाग से निकाल देना होगा।
क्योंकि ये कई बार हम लोग अपने आप को ये फील करते हैं कि उन्होंने इस तरीके से बोला कि आपको कोर्ट में ठीक से बात कीजिए, तो हमने लगा कि नहीं वो मुझे जानते हैं या मैं जूनियर हूँ, तो इस तरीके से ये उन्होंने ये बोला। आपको ये बताऊं कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं या कोर्ट है, ये ना एक्चुअली सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिशनर को। कई बार नहीं आता है तो बताते भी हैं वो कि आप ऐसे नहीं, ये पिटीशन ऐसे फाइल कर दो या इस तरीके से कर दो। मैं आपको एक एक्सपीरियंस याद दिलाता हूँ कि मैं जब पहली बार कोर्ट में अपियर हुआ था, आज से 2002-3 की बात है, तो मेरे पास एक पहला केस आया था चेक बाउंसिंग का, 138 में फाइल होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। मैंने क्या किया कि पिटीशन ड्राफ्ट करके और रट्टा मार लिया पूरा पिटीशन। एक तो एक पेज में लिखा, ये मेरे कोर्ट ड्राफ्ट मैंने सुना था, और एक पेज मैंने उसको लिख लिया। जैसे मेरा आइटम नंबर 56 मिलॉर्ड, एक तो मैं सबसे पीछे खड़ा था, दौड़ते दौड़ते गया और आगे जाके खड़ा हो गया, और मैंने जो रट्टा लगाया था बस पढ़ के चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, और जोर जोर से। फिल्मों में सुना था वो सनी देओल को बोलते हुए, तो सनी देओल टाइप से मैं स्टार्ट हो गया बोलना। अब वो जज साहब मुंह देखने लगे, 56 मैटर है तो आप समझो 56 एडवोकेट्स और उनके क्लाइंट वो भी कोर्ट में थे, 150-200 लोग कोर्ट रूम में थे, और मैं चिल्लाना स्टार्ट। फालतू मैं बोले जा रहा हूँ। अब जज साहब ने बाद में फिर रोका मुझे, शी वॉज वेरी नाइस पर्सन एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा, वकील साहब आप पहली बार अपियर हो रहे हैं क्या? मैंने हंस दिया, यस मिलॉर्ड मेरा पहली बार है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक बार चांस देता हूँ, आप जाके ना एक बार अपना पिटीशन रीड्राफ्ट करिए और दोबारा फाइल कीजिए। अब क्या होता है कि मैंने, जैसे राजन जी आपने पूछा इस सवाल में, तो उस दिन मुझे लगा कि मेरे में एक गलती की, मैं ना सीधा कोर्ट रूम में चला गया। मुझे ना जाके 2-4 दिन बैठना चाहिए था। अगले दिन मैंने ना 2-4 दिन में बैठना स्टार्ट किया, लगातार 10 दिन मैं कोर्ट रूम में बैठा हूँ, 3.5 की पिटीशन देखी। उसके बाद मैं अपियर हुआ, तो सीजन लॉयर मैं कोर्ट रूम में खड़ा खड़ा होते ही मेरे फेवर में नोटिस हो गया। नोटिस का मतलब होता है कि अगर मैं किसी साइड से अपियर हो रहा हूँ अपने प्लेंट में, तो पहले ना अपोजिट पार्टीज को नोटिस किया जाता है, वो हो गया। अब कोर्ट रूम में एक चीज और होता है कि हम लोग कई बार अननेसेसरी बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। उतना ही बोलना चाहिए जितनी की जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कई बार आप नहीं बोलेंगे तब भी फैसला हो जाता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अग्रवाल सर मैं एक स्टोरी ले सकता हूँ ना, एक्चुअली मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। यस हाँ, तो एक बार हाई सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर में मैं अपियर हो रहा था। उसमें किसी बिल्डर का केस था, और बिल्डर वॉज ए पॉलिटिशियन, और वो पॉलिटिकल पार्टी थी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी। बट उन्होंने मुझे नहीं, उनके अगेंस्ट में मैं हो रहा था, मैंने उनके अगेंस्ट में केस फाइल किया था। तो मेरा मैटर मुझे पता था कि खराब है, मैंने अपने क्लाइंट को समझाया भी था कि तुम्हारा मैटर ना एडमिट नहीं होने वाला है, इसको छोड़ दो। बोला नहीं नहीं सर फाइल करो, मुझे ना उसको सबक सिखानी है उन पॉलिटिकल पर्सन को। मैंने कहा ठीक है यार, पैसा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, फाइल कर दिया मैंने। अब कोर्ट रूम में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में होता क्या है, और ट्रिब्यूनल में भी जो हाईएस्ट ट्रिब्यूनल्स होती है, ये लोग ना पढ़ के आते हैं पहले से आए, और एक दिन में 1 मिनट में 10-10 मैटर डिसमिस होते हैं। मेरा फाइल भी लिया और डिसमिस होने ही वाला था, तब तक उस पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 3 सीनियर एडवोकेट अपियर हो गए एक ही मैटर में। वो सीधा धरल्ले से आगे खड़े होना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, और मेरा मैटर डिसमिस हो रहा था। अब उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये गलत पिटीशन फाइल हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, 50 चीजें 10 मिनट तक उन्होंने खूब सुनाया। जज साहब ने कहा कि ये मैटर तो मैं डिसमिस कर ही रहा था, ये फाइल मेरे हाथ में था, मैं फेंक ही रहा था अभी, तब तक अब आप आ गए। अब आप सीनियर एडवोकेट हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है इस केस में, क्योंकि आपकी फीस मुझे पता है क्या आपकी फीस है जो चार्ज, और ये वकील साहब कभी कभी आते हैं तो इनकी फीस भी मुझे आइडिया है क्या ये चार्ज कर रहे होंगे। तो अगर इतने सीनियर एडवोकेट आए हैं तो मामला कुछ ना कुछ फीसी है, तो मैं तो अब तो नोटिस कर देता हूं मैं। तो उन्होंने नोटिस कर दिया। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि इन 2 सिचुएशन में हमें कम बोलना है, और एक कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये 10 दिन जब हम कोर्ट रूम में बैठेंगे ना तो ये आ जाएगा राजन जी। और सर ये चीजें सिचुएशन नहीं आ होती रही है, आई एग्री विथ यू। बट सर कभी कभी एक चीज सिचुएशन बताइए, सभी लोगों ने फेस किया होगा सर, सामने वाले कोई सीनियर लॉयर आ जाते हैं और हम उनके कंपेयर में, यदि उनका 25 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा अभी जस्ट 3-4 साल हुआ है, तो क्या मुझे मतलब जज साहब थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली होता है, तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज, 1 और 2 पॉइंट। हाँ, मैं आपको बिल्कुल, देखिए मैंने जब अभी एग्जाम्पल आपको स्टोरी सुनाई ना, वो इसलिए स्टोरी सुना दिया था, मुझे लगा था इस सवाल कहीं आप पूछेंगे,
तो एसओडी ने इसलिए पहले ही सुना दिया। इग्नोर तो करते मतलब हैं, जेन्युइनली that's ऐसा true. होता है। होता है बट देखिए इवन मैं इफ जो जूनियर लॉयर आपके है सर वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख रहा हो बट फिर भी ऐसा होता है। तो मुझे बनना क्या है, मुझे भी तो सीनियर बनना है ना। कल मैं फाइट तो करूंगा ना, यस सर। मैं फाइट दूंगा। आज अगर अमिताभ बच्चन पहले दिन से बाहर हो गए होते तो आज अमिताभ बच्चन नहीं होते। फाइट दिया ना, और जितने भी सीनियर एडवोकेट हुए हैं उनके साथ भी कभी ना कभी जूनियर थे, उनके साथ भी यही सिचुएशन आई है। बट व्हाट दे डिड, वो फाइट में रहे, वो कभी उन्होंने ना गिव अप नहीं किया है। तो हमें भी गिव अप नहीं करना है अपने आप। सर यस सर, वन क्वेश्चन सर, आप एज ए एडवोकेट कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जस्ट मेनी ऑफ अस मैंने बताया कि मैंने करीब 23 साल हुए, जिसमें फिर 9 साल 10 साल मैं प्रैक्टिस में जॉब में था, फिर अभी अब 11 साल हो गए फिर से कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में। अरे अवनीश जी, अजय- नोटिस दिया मतलब क्या हुआ इसका? नोटिस का क्या होता है सर कि आज मैंने जैसे कि आपके अगेंस्ट में 200 करोड़ का केस फाइल किया, तो अब मैंने ये कोर्ट में पिटीशन अपना फाइल कर दिया, रिकवरी सूट कोर्ट में फाइल किया 200 करोड़ का। तो कोर्ट में केस फाइल करने के बाद कोर्ट में जो पहला डेट लगता है वो लगता है एडमिशन के लिए कि क्या मेरा मैटर एडमिशन के लायक है भी या नहीं है। अगर कोर्ट मुझे पहले दिन मुझे सुनती है और अगर लगता है कोर्ट एडमिशन के लायक है तो मेरे मैटर को एडमिट करती है एंड इशू ए नोटिस। वो आपको नोटिस भी भेजती है कि अब आपका ये पिटीशन आपके अगेंस्ट में फाइल हुआ है, आप इसमें रिप्लाई फाइल करो। नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। तो नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। अच्छा, मैं जीएसटी का कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हाई कोर्ट में वही केस जाएगा जो ट्रिब्यूनल पास करता है। ट्रिब्यूनल अभी सेटअप है नहीं, इन बाई ट्रिब्यूनल अगर सेटअप हो जाता है, उस ग्राउंड में 5 ग्राउंड हमने रेज किए और उसमें से 3 ग्राउंड में हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ जा सकता, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो जा भी नहीं सकता। तो जो पहला हियरिंग होगा दैट इज वेदर दिस केस इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट। यस, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स बोथ, जो पहला हियरिंग होगा। अच्छा, जीएसटी में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो हियरिंग होती नहीं है उसकी। देखिए जीएसटी में ट्रिब्यूनल में किस तरह के केसेस जाएंगे? जी, ट्रिब्यूनल में तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों जाएगा। दोनों जाएगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हाई कोर्ट में जाता है तो हम लोग हाई कोर्ट में आर्ग्यू ये कर सकते हैं कि दिस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाज नॉट करेक्टली इन्वेस्टिगेटेड, नो प्रॉपर इंक्वायरी हैज बीन डन, ये पॉइंट पर आर्ग्यू हो सकता है और हाई कोर्ट कैन रिमांड द केस बैक टू द ट्रिब्यूनल और टू द लोअर अथॉरिटी। लेकिन जहां तक क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल अगर कोई केस पास करता है तो हम लोग क्वेश्चन ऑफ लॉ में ही लेंगे। तो फर्स्ट हियरिंग होगी ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ कि वेदर इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट। देखिए पहले डेट पे ये हियरिंग होगी कि आपका केस एडमिट होने के लायक है कि नहीं है। अच्छा, पहला केस यही होगा। ओके ओके। हाँ, पहला केस यही होगा कि आपका केस एडमिट होने के लायक है कि नहीं है। और वो क्या ग्राउंड होगा उसका? जो भी आप ग्राउंड लगाते हैं, जो कि नीचे पे आपकी बात नहीं सुनी गई है, जो भी आपका मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट में डिसीजन हुआ है, you are not satisfied with the decision. Why you are not satisfied with the decision of the honorable tribunal? That's why you went there to the filed appeal before the honorable high court. तो वो dissatisfaction का क्या reason था? Court has not not considered your plaint. Whatever you have written in your plaint, that the court has not considered that particular point. अच्छा, ठीक है ना, किसी एक चीज को उन्होंने पूरा का पूरा ओवर रूल ही कर दिया, उसको देखा ही नहीं या डिसीजन ही नहीं दिया। हाँ, कॉज ऑफ जो आपने रेज किया था उसमें 10 पॉइंट आपने रेज किया था, 10 पॉइंट में आपने रीजन अपने सपोर्ट में 10 पॉइंट आपने दिया था। 10 पॉइंट में सिर्फ 8 पॉइंट आपके जो अगेंस्ट वाला लिया वो उन्होंने ले लिया, उस 2 पॉइंट को लिया नहीं। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, और वो आपके फेवर में डिसाइड भी कर सकता था। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं, वो जो आपके ग्राउंड है वहां पे अपील का। तो पहले डेट पे वहां पे अगेन एडमिट होगा, एडमिट होने के बाद फिर से नोटिस होगा वहां पे, अब डिपार्टमेंट को नोटिस होगा वहां पर। सर, इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ? जो अभी आपने बोला कि 2-4 पॉइंट को अपने दिखा करके वापस से केस एडमिट करवा सकते हैं। देखिए वहां पे अगर फैक्ट्स और लॉ दोनों है तो मेरा किस पॉइंट्स पे नीचे की ट्रिब्यूनल ने मेरी बात नहीं सुनी। फैक्ट्स मतलब तो क्लियर है कि जो मेरा फैक्ट था, और लॉ भी क्लियर है, तो हो सकता है कि लॉ भी हो और हो सकता है फैक्ट, हो सकता है दोनों भी हो। तो बेसिक डिफरेंस क्या है अवनीश क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ? प्लीज क्लियर कीजिएगा, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन बट आई वांट टू आस्क। आवाज साफ नहीं आ सर, रही। मैं भी कुछ क्वेश्चन ले लूं सर? हाँ संजय जी पूछिए।
हाँ, मेरा थोड़ा सा सर, जो आपने काफी कुछ पूछ लिया उसी से रिलेटेड था सर, अभी सर से जीएसटी के पर्सपेक्टिव में सर। बेसिकल सर, जो नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होती है कि सर इसमें जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट होती है उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, वही प्रमोट होकर हमारे केस को देखते हैं। और नॉर्मली सर क्या एक्सपीरियंस देखा है कि वो प्रो डिपार्टमेंट होते हैं, कि वो फेवर करते हैं डिपार्टमेंट के लिए, चाहे मैटर ऑफ लॉ हो या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो। आज की डेट में यहाँ ट्रिब्यूनल सेटअप नहीं है, तो हम लोग जब डायरेक्टली सर जब रिट फाइल करने जाते हैं, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, तो बेसिकली जो लोग रेगुलर नहीं है तो उन्हें ये नहीं पता है सर कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि सर वहां टाइम होता है टेकिंग प्रोसेस का 1 to 2 मिनट्स। तो 1 से 2 मिनट में हम अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करें कि सर हमारा जो पॉइंट था जो नीचे कंसीडर नहीं किया फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने, या वो ऑफिसर्स थे और उन्होंने डिपार्टमेंट को फेवर किया जबकि टेक्निकली हम यहाँ स्ट्रॉन्ग थे, या उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट जाके वर्क किया। वैलिड पॉइंट है कि मतलब रिट का ग्राउंड क्या होता है और वो 2-3 मिनट में डिसाइड कर देगा जज। ठीक बात है, क्योंकि देखिए, सर वहाँ एडमिशन के लिए वही पॉइंट है। हाँ संजय जी, मैंने इसलिए बीच में आपको उस समय बोला भी था, एडमिशन के दिन में ना जैसे भी बड़े कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 60 सेकेंड में 1 मिनट में करीब 30 मैटर होते हैं, वो डिसमिस होते हैं जी। वैसे ही हाई कोर्ट में जैसे कहा गया आपने 1-2 मिनट टाइम दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि हमें ना अपने जो जब हम प्लेंट की बात कर रहे थे ना, जब हम प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं, प्लेंट इंक्लूड्स द रीट ऑल्सो, है ना। तो वहां पे जैसे मैंने बताया कि एक तो जुरिस्डिक्शन के अलावा कॉज ऑफ एक्शन और क्या ग्राउंड्स ऑफ अपील है। ग्राउंड्स ऑफ अपील को बहुत क्लियरली मेंशन करना है, वो ग्राउंड्स ऑफ अपील है क्या, हम क्यों अपील में आए हैं, है ना। वो बिल्कुल ही क्लियर, कंसाइज, वेग नहीं होना चाहिए। जितनी भी आसान भाषा में लिख सकते हैं वो ग्राउंड्स ऑफ अपील हम लिखें और प्रेयर लिखें। जो जजेज होते हैं जो 1 से 2 मिनट जो सुनते हैं, जैसे आपने कहा, वो ना एक्चुअली क्या है कि वो पीछे से ना पढ़ के आपके आए होते हैं उस ग्राउंड्स को, है ना। उसी बेसिस पे उनका माइंड मेकअप होता है कि एडमिट करना है या डिसमिस करना है। जब मैं स्पेशली हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ आपको, हाई कोर्ट से रिलेशन में पूछ रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि सर तो वहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेशन में एक चीज और मुझे पूछना है सर, जो भी हम लोग जब कभी भी रिट ड्राफ्ट मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ, आपने जो पूछा था उसको करता हूँ। तो अब वो ग्राउंड्स मेरा क्लियर है, तो जज के पास ऑलरेडी रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च करके वो ऑलरेडी उनके पास पॉइंट्स बना के दे देते हैं कि ये ग्राउंड्स आया है। अब वो सोचते हैं कि ठीक है या गलत है, अब कर लेते हैं। अब हमें जो 2 मिनट और 1 मिनट का टाइम मिला है, अब हमें बोलना क्या है, जैसे आपने पूछा। तो जैसे कि रूल है, अब हम लोग जैसे बहुत बार हम लोग बोलते हैं कोर्ट रूम में या अलग अलग जगह में, तो ये होता है ना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना 10 से 15 सेकंड मिलते हैं, है ना। इसी में इम्प्रेशन होता है। अब मुझे 1.5 मिनट 2 मिनट नहीं जाना, उस 10-15 सेकंड में वो ग्राउंड्स अपील में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है और मुझे लगता है इन द आईज ऑफ द जजेज ऑल्सो, मुझे अपनी तरफ से नहीं लगता, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगेगा ना। मेरा बच्चा है, मेरा पिटीशन है, मेरा ड्राफ्ट है, मैंने लिखा हुआ है, तो मेरा तो सब कुछ अच्छा है। बट एक्चुअली ना उन जज साहब के लिए उनके पर्सपेक्टिव से और अदर काउंसिल के पर्सपेक्टिव से इनमें कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन 10 ग्राउंड्स ऑफ अपील में वही पॉइंट लेके मुझे ना आते ही स्टार्ट हो जाना है और बोलना स्टार्ट कर देना है, जैसे मेरा नंबर आता है ना। और जितनी भी क्वेरीज होती है, उस क्वेरीज के लिए मेरे पास टाइम, रिस्पॉन्स का भी टाइम मेरा फास्ट रखना है। हो सकता है कि उन्होंने तुरंत क्वेरी किया, नहीं आपने इसमें ये फलना चीज तो है नहीं, तो बोला नहीं, नो मिलॉर्ड आई हैव इट। अब उनमें क्या वो सवाल पूछ सकते हैं ना, वो भी मुझे पहले से आर्टिकुलेट करके रखना है, और जो वो सवाल पूछ सकते हैं उसके पहले मुझे पेजिंग कर लेना है, उसमें फ्लायर लगा लेना है, और वो तुरंत पेज पलट के बताना है, मिलॉर्ड सी द पेज नंबर 62 ऑफ दिस एनेक्सर पैरा नंबर 3 ऑफ दिस पेज, ताकि ना मेरा टाइम 1 सेकंड भी मैं वहां पे वेस्ट नहीं करूं। यस तो सर कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जो हियरिंग डेट होती है उस दिन एटलीस्ट हमारे पास पूरा होना चाहिए, जो हम पूरा प्लान डायल किया वो पूरा हमारे पास होना चाहिए, समरी होनी चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो जो भी पूछें वो हमें बताना है, या जो भी हमें एविडेंस लगानी है वो साथ में अटैच होनी चाहिए, जो हमने लोअर कोर्ट पे या बिफोर द ऑफिसर्स लेवल्स पे दिया है वो सारे लगाने चाहिए हमें।
आपको बिल्कुल लगानी चाहिए। आपको एक चीज बताऊं, जैसे हमारी जिंदगी होती है, हमारी जिंदगी में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मेरा जन्म, जन्म के साथ तो उसके बाद मरने का दिन तो तय होता है, वो तो मर ही जाते हैं, है ना। एक जन्म इंपॉर्टेंट होता है, उसका जन्म के बाद शादी इंपॉर्टेंट होती है, और जिस दिन हमारी नौकरी लगती है, प्रोफेशनल डिग्री मिलती है, ये सब डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जी। और खास करके ये जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, ये अपने आप में ना पूरा कैरियर मेरा डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 12th में हमारे बच्चों का कैरियर डिसाइड करता है, वो साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, क्या ले रहा है ना, वो भी डिसाइड करता है कि उसकी पूरी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। सिमिलरली पूरे केस में जो एडमिशन डे होता है ना, एडमिशन डे पूरा मैटर ही डिसाइड करता है। अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने आधी आधी तो जीत लिया आपने केस। जी। एडमिशन हो गया मतलब आपने आधा जीत लिया। और आर्गुमेंट के लिए दो ही टाइम पे किसी सीनियर की जरूरत होती है, एडमिशन के टाइम में और आर्गुमेंट के टाइम में, नॉर्मल केसेस में ओके। और अपील में। और मैं कहूँ अब जो ट्रायल का मैटर है, मैंने सिविल केसेज और क्रिमिनल केसेज, वहां 3 जगह जरूरत होती है, एडमिशन में, क्रॉस एग्जामिनेशन में जिसको एविडेंस भी बोलते हैं, जी। और आर्गुमेंट में। बस इन 3 जगह में, और इन 3 चीज में एक में कहीं स्टे लेना हो, अगेन दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही 4 दिन की तैयारी है, और इसके बाद बस सो जाना है कोर्ट में, जो भी करे, जूनियर जाए, कोई बरे, कुछ भी नहीं होना है बाकी डेट्स पे। बाकी में सिर्फ नॉर्मल चीजें होती है कि डॉक्यूमेंट लिया, दिया, अपीयर हुआ। यही 4 डेट होता है बस इम्पोर्टेंट। तो सर जो डेट ऑफ एडमिशन के दिन स्टैंडिंग काउंसिल जो होते हैं, जो डिपार्टमेंट को वो कर रहे होते हैं स्टैंडिंग काउंसिल, वो भी काउंटर करते हैं सर हमारे पॉइंट पर, जैसे हम बिल्कुल जब जा काउंटर रहे हैं? करते हैं, बिल्कुल काउंटर करते अच्छा। हैं, इसलिए कि एडवांस में आपकी कॉपी एडवांस में सर्व होती है ओके। पिटीशन को। हाँ, किसी भी हाई कोर्ट या बड़े ट्रिब्यूनल में जब आप केस फाइल करेंगे, सो यू हैव टू सर्व द एडवांस कॉपी टू दी अपोजिट पार्टी। तो लगभग है ना। कितने दिन में होता है सर ये? जैसे हमने जब फाइल करते हैं, अपना प्लेंट ऑनलाइन फाइल करते हैं, तो हमें खुद सर्व करानी होती है या वहीं से जाएगी कोर्ट से उस डिपार्टमेंट? नहीं, दोनों तरीके का हो रहा है। अब आपको हमें खुद ही सर्व करना पड़ता है, नोटिस होने से पहले हमें खुद ही सर्व करना होता है। नोटिस होने के बाद भी हम भी करना, और कोर्ट भी सर्व करती है। बट नोटिस होने के बाद वो सर्व करती है, नोटिस से पहले एडमिशन डे के लिए हमें ही सर्व करना पड़ता है, तो वो सर्व सर करके जैसे उसकी कॉपी फाइल करनी होती है साथ में। यदि petition के डिपार्टमेंट साथ। नोटिस इशू कर देता है, तो वो लोअर कोर्ट से पूरी फाइल मंगाता है स्टडी करने के लिए, या स्टैंडिंग काउंसिल अपने पॉइंट्स बना के देता है उस पॉइंट पर? स्टैंडिंग काउंसिल अपनी पॉइंट बना लेता है अपने उसके बेसिस पे, अच्छा, क्योंकि उनके पास तो उसके देखिए, हाँ, एक तरह का रीट जो जा रहा है ना, वो रेगुलर, जी। अगर टैक्स से रिलेटेड रीट है और जी। डिपार्टमेंट वाले रीट्स हैं, तो डिपार्टमेंट वाले रीट सिमिलर तरीके का ही फाइल होता है। हम्म। तो पहले दिन वो ऑब्जेक्शन करते ही करते हैं, और फाइल मंगा लेते हैं। उनके पास तो फाइल मिल ही जाती है ना, इंटरनल फाइल मिलने में उनको ज्यादा टाइम लगता नहीं है। नहीं, नॉर्मली जैसे हम लोगों के, जैसे इलाहाबाद में हाई कोर्ट है और पूरा ज्यूरिडिक्शन हमारा जैसे बनता है, मैं आगरा से हूँ, तो फाइल जैसे हमने प्लेन फाइल किया, उसकी कॉपी मैंने सर्व करा दी वहां पर, तो पहले यानी एडमिशन के लिए जो फर्स्ट हियरिंग होगी, उसका टाइम लगभग कितने दिनों का होता है? नॉर्मली कहते हैं कि शायद विद इन अ वीक और 2 के अंदर आ जाता है। ये देखिए क्या है ना, इसके लिए रेट के लिए अलग अलग एडमिशन डेट का ना, मैं इलाहाबाद, अब दिल्ली है, यहाँ पे 2-3 दिन में आ जाता है। इलाहाबाद हफ्ता बता रहे हैं, यहाँ पे ऑनरेबल एडवोकेट कोई बिहार पटना से होंगे, वहाँ हो सकता है एडमिशन में 6 महीना लग जाता है, ऐसा भी होता है। मैं तो ये सर ना वही डिपेंड। पूछने वाला था कि हाँ, यदि वीक के अंदर आ गया, तो वीक के अंदर यदि मेरी प्लेन फाइल हो गया, तो क्या 1 महीने के 1 हफ्ते के अंदर वो डिपार्टमेंट, वो उसकी ड्यूटी है स्टैंडिंग काउंसिल की लोअर नहीं कोर्ट से उसकी फाइल ड्यूटी, मंगाने की? नहीं, ड्यूटी उस दिन के वो लिए नहीं है। मेरे प्लेन के ही ऊपर वो पॉइंट्स बनाएगा? देखिए, आपके प्लेंट पे ही वो बनाएगा, और कुछ क्वेरी है तो डिपार्टमेंट से पूछ लेगा कि ऐसा रिट आया है, इस पे तुम अपना बना के दो। तो आपको पता है कि डिपार्टमेंट में लीगल ऑफिसर्स होते हैं, ऑलरेडी अपॉइंटेड लीगल ऑफिसर्स होते हैं, वो डेली कोर्ट जाते हैं, उनको डेली नोटिस मिलता है, और नोटिस लेने के बाद वो शाम में जाकर अपना बना के अपना डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्टैंडिंग काउंसिल को भेज देते हैं। तो आपने जो भी फाइल किया वो लीगल ऑफिसर को चला गया। लीगल ऑफिसर का काम ही वही है करना। लीगल ऑफिसर ने अपने पॉइंटर बनाए और स्टैंडिंग काउंसिल को दे दिया उसने। अब तो हो जैसे एक सकता है उसको। एग्जाम्पल है अवनीश जी, 16/4 जैसे झारखंड हाई कोर्ट और बहुत वेरियस हाई कोर्ट में चैलेंज है, तो 16/4 का केस एडमिट हुआ पड़ा है। जैसे एडमिट हुआ, उसके सारे कॉपीज झारखंड के कमिश्नर लेवल पे के पास चले गए, कि कमिश्नर से पूछा जा रहा है कि इस पे अब आप अपना ओपिनियन दे दीजिए, ताकि अल्टीमेटली उनको तो फाइट करना है ना वहां पर। तो वो ऑब्वियसली जो जाएगा स्टैंडिंग काउंसिल के पास, मतलब अपोजिट पार्टी के पास, तो वो सभी डिपार्टमेंट में वो भेज देते हैं।
मतलब किसी एक के पास जाएगा। मुझे लगता है कमिश्नर, जब आप झारखंड हाईकोर्ट जाते हैं तो स्टेट ऑफ जो अपोजिट पार्टी है, या तो वो स्टेट ऑफ झारखंड होगा या फिर दोनों होगा, यूनियन ऑफ इंडिया भी हो सकता है। तो सबके पास, और जिसमें जीएसटी काउंसिल को भी रेस्पोंडेंट बना देते हैं, सीबीआईसी को भी रेस्पोंडेंट बना देते हैं, तो कई पार्टीज को वो रेस्पोंडेंट बना रहे हैं 16/4 का अगर चैलेंज हो रहा है तो। 16/4 अवनीश जी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हो रहा है। 16/4 एक लॉ है जीएसटी में, जहां पर कह रहा है जा रहा है क्रेडिट आप इतने समय के बाद ले नहीं सकते, उसी को चैलेंज किया जा रहा है। जी देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने कहा ना कि पार्टी उनको बना देते हैं, तो मेरा मानना यही है कि मैं भी यही करता हूं जनरली, कि जितना पार्टी आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का केस कर रहे हैं ना, तो जितना पार्टी बना सकते हैं सबको पार्टी बना लीजिए। ज्यादा पार्टी बनाने से होता है ना कि आपका केस जल्दी खत्म होने के चांसेस होते हैं। डिपार्टमेंट वाले केसेस में तो नहीं करना चाहिए। डिपार्टमेंट वाले केसेस में तो क्या होता है कि वो फिर अननेसेसरी सरकारी मामले की तरह डिले होता है। और जैसे कि संजय जी ने बोला भी कि कई बार ये जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, वो ऑफिसर्स उनको ही सपोर्ट करते हैं, डिपार्टमेंट वाले को ही सपोर्ट करते हैं ज्यादातर। और इनफैक्ट मैं कहीं कहूँ कि विद हम्बली आई एम सेइंग दी कोर्ट भी कई बार डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा झुकाव होता है ना। उनको टैक्स पेयर को लगता है कि टैक्स पेयर तो बस इसने तो चोरी की ही है, ये तो पक्का अच्छा है। सर, अभी सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रहा था कि नॉर्मली जैसे कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ लॉ है जिस पर डिफरेंट कोर्ट्स ने, डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट्स ने फेवर में डिसीजन दिया एसएससी के, जब हम उनकी कॉपीज को हम लोअर कोर्ट्स में देते हैं, वो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कंसीडर नहीं कर सकते हैं, वो करना नहीं है करते उनको हैं मैंडेट। सर। करना मेरा पड़ेगा, रिवाइज है। क्योंकि बिकॉज अगर नहीं करते नहीं, तो आपके अगर यूपी है, जस्ट टेकिंग ऑन एग्जांपल, अगर यूपी है तो आप यूपी हाई कोर्ट का जजमेंट देते हैं या किसी और हाई कोर्ट का? नहीं, जैसे यूपी हाई कोर्ट का उस पर नहीं है, थोड़े से डिफरेंट पॉइंट है, मगर पॉइंट टू पॉइंट पर किसी और का, झारखंड हाई कोर्ट का है, उड़ीसा का, कर्नाटका का है, तो नहीं तो करेंगे। नॉर्मली यहाँ कहते हैं कि वो मेंशन हमारे फैक्ट्स इससे एक सिंपली सी लाइन कर देते हैं कि इसके फैक्ट्स हमसे मैच नहीं करते हैं, एक दो लाइन दे देते हैं, जबकि या तो उसको प्रॉपर क्रॉस करना चाहिए लोअर अथॉरिटी को, जो नहीं करते हैं। तो जब हम हाई कोर्ट में आते हैं तो क्या हम ये पॉइंट ले सकते हैं कि सर जब हमारा ये पॉइंट ऑफ लॉ था और इस पर हमारे फेवरेबल डिसीजन है एसएससी के फेवर में डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के, जो नीचे नहीं दिए कंसीडर किए गए। मैं समझ गया आपका क्वेरी, मैं समझ गया हूँ। देखिए, आपको बताऊं इस पे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यही है अभी तक तो, कि इनको मानना है, बिल्कुल। चाहे किसी भी हाई कोर्ट का है, वो सुपीरियर है, तो ये कंसीडर करना है। बट क्या है कि जनरल ट्रेंड इन्होंने बना लिया है कि नहीं, ये मेरे हाई कोर्ट से आया है नहीं आया, मैं उसी को मानूंगा। तो सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं हम सर? कंटेम्प्ट ऑफ नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो इस मामले में कंटेम्प्ट नहीं है, तो होता है उसमें ना, कंटेम्प्ट जज के अगेंस्ट तो नहीं हो सकता है ना। अच्छा अवनीश जी, ये जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए जो डिपार्टमेंट वाले भी जो लोग होते हैं वो भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है जी। जो डिपार्टमेंट, जो जीएसटी की भी बॉडी होती है, वो भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज मानी जाती है। तो उन्होंने माना और नहीं माना, उसके लिए ये कंटेम्प्ट नहीं होता है, उसके लिए अपील होता है। अच्छा, तो मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसकी कॉपी मिल सकती है हम लोग को, कि मतलब दूसरे हाई कोर्ट का भी मानना पड़ेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो उसके उसी जुरिडिक्शन में अप्लाई होगा, बाकी जुरिडिक्शन में अप्लाई नहीं होगा। ऐसा लिखा है कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट का लिखा है तो सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट का अगर जुरिडिक्शन है तो बॉम्बे हाई कोर्ट के स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में अप्लाई होगा, उसका डिसीजन स्टेट ऑफ और किसी स्टेट में अप्लाई नहीं होगा। ओके। अब देखिए, मैंडेटरी, मैं आपको एक चीज बताऊं जो भी मैं परसुएसिव वैल्यू तो है, आई अंडरस्टैंड, बट मैंडेटरी नहीं है। इसी चीज में लूप होल्स है अलग अलग बार, जैसे ये अभी आपने जहां पढ़ा हो, और कई बार जजमेंट ये भी आया कि नहीं उनको मानना है, दोनों चीज होता है। बट क्या होता है कि लोग अपने फायदे के लिए अपने वाला लॉ यूज करते हैं, ओके, है ना। लोग अपने फायदे के लिए अपने वाला लॉ यूज करते हैं कि नहीं जी मेरे जजमेंट नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। बट रेफरेंस के लिए उनको ये जजमेंट अगर इस तरीके का है और ये अगर मना नहीं करती है, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी ये मना नहीं करती है, और ऐसा जो पॉजिटिव एंगल्स अगर आ रहा है महाराष्ट्र हाई कोर्ट से आ रहा है, तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जजमेंट को लेना चाहिए। ऐसे भी जजमेंट्स हैं जो कि कंसीडर करें, वो है, अगर है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। श्रीवास्तव सर, मेरा यही कहना है कि जीएसटी एक्ट है वो पूरे इंडिया में सेम है, तो यदि एक हाई कोर्ट ने उस पर यदि एक पॉइंट पर यदि फेवरेबल डिसीजन दिया है तो दूसरा स्टेट उसको क्यों नहीं मानता?
जब सेम एक्ट है पूरी जगह, एक ही एक्ट सब जगह एप्लीकेबल है, एक हायर अथॉरिटी ने दे दिया, तो वो चीज क्यों ऐसी जुडिशियल अफसर से तो उसको बाउंड क्यों नहीं है? और देखिए क्या है कि अभी ये नया लॉ है जी और मैच्योर हो रहा है। जब थोड़ा मैच्योर होगा, जब तक अभी ट्रिब्यूनल भी नहीं बनी है, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि ट्रिब्यूनल जब लॉ बना था तभी ट्रिब्यूनल बन जाना चाहिए था। और ऐसे लॉ में जहाँ की सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा लॉ पहली बार हुआ जो कि इतना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जहाँ की इतना कुछ अलग अलग तरीके की चीजें हैं जिसमें उसके बाद भी ट्रिब्यूनल नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेलियर है इस चीज को लेके, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल तो पहले दिन बनना चाहिए था इस पे। सर इतनी बार उन्होंने एक्ट में रेक्टिफिकेशन कर दिया है कि पता ही नहीं है सर, सो मेनी टाइम्स। अच्छा, और आखिरी दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं संजय जी। हाँ सर प्लीज। बाकी लोग कोई क्वेश्चन पूछ लेने तो फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। सर एक छोटा सा सर हाँ पुष्पेश जी पूछिए। सर जब ये मोशन हियरिंग होता है तो क्या उसी हियरिंग पे क्या मुझे स्टे मिल सकता है? अगर मान लीजिए कोई रिकवरी है मेरी, तो क्या मैं वहीं उसी मोशन हियरिंग पे क्या स्टे के लिए प्रेयर कर सकता हूँ? अगर एडमिट हो जाता है केस मेरा, तो क्या उसी टाइम मुझे स्टे मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए स्टे वैसे भी जब स्टे की एप्लीकेशन फाइल होती है ना 39(1)(2) में सीपीसी के फाइल होती है, तो ये पहले डेट के लिए ही जनरली फाइल करते हैं। लेकिन अब रिकवरी के केस में ना आप स्टे का कोई लॉजिक नहीं है। स्टे होता है ऐसे कि मान लीजिए कि ये कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, वो लग रहा है कि प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, तो ये एक स्टे का मुद्दा होता है। पार्टीशन सूट है, वहां लगता है कि पार्टीशन हो जाएगी, मैं स्टे है। तो ऐसे ऐसी चीजों पे होता है ना जिससे इमीडिएट इम्पैक्ट होने वाला है। नहीं सर, जैसे अभी जो रॉयल्टी के केसेस हैं, उन केसेस के ऊपर भी चूंकि काफी डिस्कशन हो रहा है और डिस्प्यूटेड है, तो उसमें भी अभी से रिकवरी निकाल दी डिपार्टमेंट ने और हम गए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट स्टे दे रही है रिकवरी का केस में कि जब तक इसका जजमेंट पास नहीं हुआ तो जब तक के लिए स्टे दिया जाए। हाँ, ये वाले स्टे तो मिल जाते हैं, बट वो पहले डेट पे ही जाना चाहिए। थैंक यू। या जिस स्टेज पे भी आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, आप जा सकते हैं, वही एप्लीकेशन फाइल कीजिए। जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो ये स्टे का हुआ 39(1)(2), एक और होता है 7(11) करके सीपीसी में होता है, जिस स्टेज पे भी आपको इनिशियल स्टेज पे लगता है कि नहीं ये केस गलत फाइल हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द पेक्यूनियरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑन सम अदर ग्राउंड्स, तो उस पे इमीडिएटली हम केस शुरू में ही फाइल कर देंगे। जिस स्टेज के शुरू वाले में हम फाइल करते हैं कि नहीं ये केस ना चलने लायक नहीं है, इस केस को डिसमिस कर देना चाहिए, तो कोर्ट ना सब कुछ छोड़ के पहले उसको सुनती है, डिसमिसल वाले केस को। थैंक यू सर। और कोई सवाल? आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये सर थोड़ा मेंशनिंग के बारे में बोल दीजिए सर, कैसे करें प्रोसीडियर ऑफ मेंशनिंग। मेंशनिंग का अलग अलग कोर्ट का अलग अलग प्रोसीजर है, और मेंशनिंग के लिए पहले एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है एक दिन पहले, और अपोजिट पार्टी को भी सर्व करना पड़ता है, और अपोजिट पार्टी को सर्व करके फिर हम लोग कोर्ट को रजिस्ट्रार को शेयर करते हैं ये मेरा अर्जेंट है और मैं मेंशनिंग में लेके आने वाला हूँ। और ये सब कुछ मान लीजिए कल का मैटर लगा मुझे आज करना है, तो आज में मुझे सर्विस करके रजिस्ट्रार को कॉपी दे देनी है कि मैं सुबह सुबह इसको मेंशन करूंगा, तो वो अलाउ भी कर देगा, तो आपका मैटर वो कॉज लिस्ट में लगा देगा और सुबह में 10 बजे आप उसको मेंशन करेंगे। बट इसके लिए कि उसको अप्रूवल होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं कि मुझे मेंशन करना है, मैं चला गया जी, आज बोल रहा हूँ मेरा जी केस है आप सुन लो, नॉट लाइक दैट। वी हैव टू गिव a proper notice to the other party, we have to give the notice to the registrar of that court and that matter will listed, then you can mention it। अब लिस्टिंग में जो कॉज लिस्ट में होता है ना उसका मेंशनिंग का नहीं आता है नाम, बट वो आपको रजिस्ट्रार जो होता है ऑफिसर वो बता देगा कि नहीं आप मेंशन कर सकते हो। इसीलिए कि फिर फाइल ना साहब के सामने, जो जज साहब होते हैं उनके साहब के सामने फाइल आ जाती है, तो एटलीस्ट आप मेंशन कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना वो एटलीस्ट वो फाइल में देख सकते हैं वो। तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अवनीश जी आप मुझे ना एक बार होस्ट बना दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर और भी कोई क्वेरी है तो हम लोग अभी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर से दोबारा हम लोग फिर से मिलेंगे। हाँ, एक बार होस्ट बना दीजिए, मैं करता हूँ। आई डिड इट। हाँ, थैंक यू। हाउ टू नो, एक और है गिरीश मारू जी का, हाउ टू नो दैट अवर प्रेयर इज एक्सेप्टेड और ऑर्डर में बी इन अवर फेवर है, चैट में। गिरीश जी इसमें ना ऑर्डर प्रेयर आपका क्लियर है, ऑर्डर एक्सेप्ट तभी होगा जब सब कुछ कंक्लूड होगा, तभी होगा।
क्योंकि उसके लिए पूरी लिटिगेशन चलेगी तभी। और प्रेयर आपका क्लियर है तो उसके बेसिस पे ऑर्डर होता है। मतलब आपने मांगा है कि मुझे ये 4 चीज चाहिए ना, उसी के बेसिस पे ऑर्डर आएगा, डिसाइड होगा कि वही इश्यू फ्रेम होगा। प्रेयर के बेसिस पे इश्यू फ्रेम होगा कि अब 4 इश्यूज हैं, 4 प्रेयर हैं, मतलब 4 इश्यूज हैं। और जब ऑर्डर होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ रिजवाइंडर, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, on the basis of the cross examination of the both the parties and evidence, and on the basis of the written argument and the oral argument of the both the parties, honorable court pass an order. So we cannot say that it will came in our favor or against. That we cannot say. That only on the based on the our documentation, whatever we have filed it. ठीक है, Thank you. अच्छा अब मैं एक बात बता दूं, फिर हम लोग वोट ऑफ थैंक्स भी करते हैं। जितने लोग जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग एक प्रीमियम जीएसटी क्लब चलाते हैं, उसके बारे में बता देते हैं आपको। और इस प्रीमियम जीएसटी क्लब में भी सजेस्ट कि क्या नोटिसेस के रिप्लाई होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये taxbykk.com में ज्वाइन प्रीमियम अगर आप जाएंगे तो वहां पर live discussion of your GST notices, suggestion of draft replies, live discussion of latest GST updates, live discussion of any of your GST queries and suggestion up to 100। ये ठीक है। 1 साल का जो आपको चार्जेस है वो 4 times 9 है, 2 साल का 13 और 5 साल का इसमें। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, जूम में वेडनेसडे और सैटरडे मॉर्निंग 7 o'clock आते हैं और आप हमें मेल में जीएसटी नोटिसेस भेज देते हैं और फिर हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। और इतने सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें से अभी आप लोग में से भी इसमें होंगे, पुष्पेश जी भी न्यूली ज्वाइंड है, कल ही ज्वाइन किया हुआ हमने। और कुछ हमने जो डिस्कस किया था वो था। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। दूसरा, हम लोग जो जीएसटी कोर्सेज के अलावा जीएसटी की किताबें जो हमने लिखी हुई है, वो अगर आप जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस किताब के बिना प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे। ये जीएसटी नोटिसेस में हमने क्या किया, जो एक्चुअल जो जीएसटी नोटिसेस हुए हैं उसका एक्चुअल जो रिप्लाई हमने किया है वो हमने यहाँ पर छाप दिया है। तो ये वो सीक्रेट है जो हमने अनसीक्रेट कर दिया, लोगों को बता रहे हैं लोग। तो वो एक्चुअल रिप्लाई दे रहे हैं। इसमें करीब करीब 20 रिप्लाईज है जो हमने और दिए हैं, प्लस कुछ चैप्टर्स, जितने भी नोटिसेस से रिलेटेड जो चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ये इसका पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, क्या क्या चैप्टर्स हम लोग डिस्कस किए हैं। एसएमटी नोटिस का रिप्लाई, डीआरसी 01 का रिप्लाई, ऑडिट नोटिस का रिप्लाई, ड्राफ्ट ऑडिट नोटिस का रिप्लाई, एडीटी 02 का नोटिस का रिप्लाई, वो सारी तमाम चीजें हैं। प्लस जीएसटी लॉ की भी बुक है इसमें, जहां पर हमने तमाम बाकी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। तो ये दोनों का कॉम्बो ऑफर है 1400 रुपीज। अब एक मिनट, तो अब अवनीश जी को सबसे पहले थैंक यू सो मच। अवनीश जी, आप आए, अपना बहुमूल्य टाइम निकाला और इतने ढंग से प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया कि कोर्ट में एक्चुअली में काम कैसे होता है। और आपके सवाल भी बहुत, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, थैंक यू सो मच। आपके सवाल बहुत रोचक थे, बहुत अच्छे थे, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू अवनीश जी, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं जब हम लोग आपको वापस दोबारा बुलाएं तो आप जरूर आएंगे। Thank you so much for inviting me, sir. And और I found it a great, great audience. So हाँ, thank you everyone for attending me and for ऑडियंस, listening me. हाँ, खास बात हमारे ऑडियंस ही तो है। True, ऑडियंस true. अगर अच्छी है तभी मजा ज्यादा आता है ना। और जितने लोग Very ये true, नए very लोग true. हैं, मैं अवनीश जी मैं क्या करता हूँ, जितने भी नए लोग हैं जिनसे मेरे पहले इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैं उनसे इंटरेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कीर्ति कुमार तो लॉ का स्टूडेंट है। कीर्ति, किस ईयर में हो, किस सेमेस्टर में हो? सर अभी मेरा कंप्लीट हो गया लास्ट ईयर। अरे वाह, मुबारक है, महाराष्ट्र से हैं। तो काफी समय से कीर्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सर मैं हरियाणा से हूं सर। अच्छा, हरियाणा से, ओके ओके ओके। अच्छा, कोई और एक है, ओके। पीकू दे, एक बार प्लीज अपने बारे में बताओगे? सर हाँ सर मैं कोलकाता से हूँ। मैं भी एलएलबी कंप्लीटेड हूँ। मैं लॉयर हिसाब से कॉर्पोरेट में काम करता हूँ जीएसटी में। अच्छा, जीएसटी तो में। मैं पैन ओके, पैन इंडिया का आपका तो चैनल का सब्सक्राइबर भी हूँ, मगर फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू पीकू जी,
और कौन कौन नया है जो हम लोग उनसे एक बार बात कर सके, जिनसे मेरी पहले इंटरेक्शन नहीं हुई है? देवांशु फुलवानी, वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। अनिल अग्रवाल जी, बी कोई लिखा हुआ, CSK गुप्ता जी, गिरीश मारू जी, ऋषि जी से मैं बात कर चुका हूं, MHP नारायण, नताबार पांडा, राजेंद्र कुमार, राकेश अग्रवाल जी को तो मैं जानता ही हूँ। इसमें से मैक्सिमम अविनेश जी हमारे वो ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा है। ग्रेट ग्रेट। कोई बात करना चाहता तो बात कर ले। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मिलेंगे। मच। वो जो मेंबरशिप है उसमें जरूर जाएगा। MHP आ गए, MHP से एक बार बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। जाते जाते बताइए। Sir, myself, Mehul Pandya, advocate from Gujarat. अच्छा। We are working as a GST consultancy here. I just saw your message on WhatsApp Okay. and suddenly joined this seminar. Good. कोई सवाल? So, sir, हाँ बताइए। for the past, sir, can you give this PPT, sir? हाँ, PPT मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल है तो पूछिए। मेरा एक सवाल है अग्रवाल सर। सर, ये आपका जो बुक है, ये मैं तो खरीदने का प्लानिंग करता हूँ, तो सर ये क्या पूरा अपडेटेड, मतलब कितना एडिशन तक अपडेट है ये? थोड़ा अपडेटेड है, मई तक अपडेटेड है। चलिए ठीक है, बाय बाय। अवनीश जी, थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच।